السلام علیکم ڈیئر لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یور آن چینل عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ جی ہاں جی، آج کرنے جا رہے ہیں ایک نیو ناول پارٹ وائز فگارے عشقم، جو کہ ریونج بیسڈ ہے، روڈ ہیرو بیسڈ ہے، انتہائی زبردست ہے۔ آپ سنیے گا ضرور، بہت مزہ آئے گا۔ اگر نہیں سننا چاہتے تو آپ لوگ یوں کر سکتے ہیں کہ آواز کو میوٹ پہ لگائیں اور خود آپ ریڈ کریں، لیکن آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ رائٹر ہے جس کی زویا لیاقت۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ اے لڑکی، چل اٹھ، جلدی سے اٹھ۔ بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی اور ساتھ ہی بازو پر سختی سے ٹھوکر محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی جس کا جسم پہلے سے ہی زخموں سے چور تھا، ہڑبڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کر اٹھی۔ ابھی تو اسے نیند آئی تھی، مگر اس دنیا نے ہر قسم کے ظلم اس پر ڈھائے تھے، اور اب اسے اس اندھیری چار دیواری جو قید سے بھی بدتر تھی میں سکون بھی میسر نہ تھا۔ چل باہر۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ وہ آدمی اسے باہر چلنے کو کہہ رہا تھا جس نے پچھلے 3 سال سے دنیا کی ایک جھلک نہیں دیکھی تھی، جو سورج کی کرنوں سے بھی محروم تھی، جو کسی نازک پھول کی طرح مرجھا گئی تھی۔ کیا واقعی سے باہر جانے کا کہا گیا تھا؟ ہم باہر جا سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ کو جس پر تقریباً زخم کے ساتھ زخم تھا دل پر خوشی سے رکھتے ہوئے بولی، چل، وقت نہیں ہے میرے پاس، سر آتے ہی ہوں گے۔ اس آدمی نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، ہم نہیں چل سکتے۔ وہ بازو دکھنے پر کرہ گئی تھی۔ تیری سی جھوٹ کی قبر کھودنے سر خود آ رہے ہیں۔ پچھلے سال سے تو یہی کہہ رہی ہے، تو چل نہیں سکتی۔ وہ آدمی غرایا، جبکہ سر سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک چہرے پر پڑا تھا۔ اس کے کندھوں تک آتے میلے بال لہرائے اور وہ دیوار سے لگی تھی۔ سر کو ایک جانب سے تھامتی ہوئی وہ کرہ گئی، ساتھ ہی سہارا نہ پا کر وہ نیچے گری تھی۔ تم پر ترس! اتنا کہہ کر وہ ٹوٹے دل کے ساتھ ہنسا تھا۔ میں تو تمہیں ایسی ٹھیس پہنچانا چاہتا تھا جو تمہیں زندگی بھر اپنے دل پر محسوس کرو۔ بے حد نفرت کرتا ہوں تم سے اور زندگی بھر کروں گا۔ تمہارے عزیز باپ نے مجھ سے میری زندگی، میرا سب چھین لیا، اور اب تم مجھ سے انسانیت کی امید رکھ رہی ہو۔ مرجان کاظمی سے وہ اسے کندھے سے جکڑتے ہوئے غرایا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اس کی خاکستر رنگی آنکھوں میں ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لب بھیج گیا تھا۔ واقعی وہ اس سے سب چھین چکا تھا، کچھ باقی نہیں تھا اس لڑکی کے پاس۔ اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا، وہ دھیرے سے کہہ کر اس کے کندھے پر گر سی گئی تھی۔ وہ درد سے آنکھیں میچتا ہوا اسے خود سے جھٹکتے ہوئے دور گرا چکا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے ندیم، اسے باہر سڑک پر پھینک دو، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ گارڈ کو سرد لہجے میں کہہ کر وہ آخری نظر اس کے ساکت وجود پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ یکدم لرز اٹھی تھی، بری یادوں کے سائے سے چاروں طرف گھیر چکے تھے۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، وہ بازو چھڑاتے ہوئے ڈھہ گئی تھی۔ چل اٹھ، سر آتے ہی ہوں گے، گارڈ نے دانت جما کر غصے سے کہا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ وہ گھبراتے ہوئے گھٹنوں میں سر دبا کر چہرہ چھپا چکی تھی۔ گارڈ نے غصے سے پہلے اسے کوئی چیز سمجھ کر پیر سے ٹھوکر ماری اور پھر بڑے بڑے قدم لیتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ کیا کروں؟ دروازے پر نوک کروں یا نہیں؟ اب کی بار وہ گھبرا کر ناخن چباتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہی ہو زونی؟ پورا دن یہیں کھڑی رہو گی تو کالج کون جائے گا؟ نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ بی اے اسٹرانگ گرل۔ خود کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس نے دھیرے سے دروازے پر انگلی سے دستک دی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کم آن، دروازہ کھول دو سڑیال، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ دانت کچکچا کر گئی تھی۔ زونی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کشمالہ بیگم جو کچن سے کام نپٹا کر ابھی باہر آئی تھی، اسے دروازے کے سامنے بت بنا دیکھ کر پوچھا۔ وہ چاچی سوری، وہ زبان کو پھسلتے ہوئے روک گئی تھی۔ امی جان، دراصل مجھے کالج جانا تھا اور دیر بھی ہو رہی ہے، اور مرجان بھائی دروازہ نہیں کھول رہے۔ لفظ بھائی پر زور دیتے ہوئے وہ ہلکی سے خفا ہو کر بولی تھی، تو بیٹا نجم سے کہہ دو، وہ چھوڑ آئے گا۔ کشمالہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا، اصل میں وہ بہت دھیرے کار چلاتے ہیں، ان کے ساتھ گئی تو کل صبح پہنچوں گی۔ بہانہ بناتے ہوئے مسکرائی۔ کشمالہ بیگم نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہیں کہاں پرواہ تھی؟ اس بار لڑکی نے تپ کر زور سے دروازے پر دستک دی تھی، ساتھ ہی یکدم دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔
مجھے کالج چھوڑ دیں، وہ بتیسی نکالتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ہی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ نہیں، سرد لہجے میں، لاپرواہ لہجے میں کہہ کر وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے تن فن کرتی ہوئی بیگ کندھے پر ٹانگ کر لاؤنج کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے جنہیں وہ ہاتھ سے سختی سے رگڑے ہوئے صاف کر چکی تھی۔ نجم بیٹا، زونی کو کالج چھوڑ دو، انتظار کر رہی تھی۔ آفرین بیگم نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن امی وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی چلی گئی۔ نجم نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن کس کے ساتھ گئی ہیں؟ آفرین بیگم نے نجم کو حیرت سے دیکھا تھا۔ شاید مرجان کے ساتھ گئی ہیں، کشمالہ بیگم نے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آفرین بیگم کشمالہ بیگم کو دیکھ کر خاموش ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل انہیں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ مرجان بیٹا، زونی کہاں ہے؟ وہ جو پہلے جلدی میں تھا۔ آفرین بیگم کے سوال پر مجبوراً رکا تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح سرد لہجے میں گویا ہوا، مگر وہ تو تمہارے روم کے باہر صبح سے کھڑی تھی بیٹا، کشمالہ بیگم نے طنز کیا، جس پر وہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، ہو سکتا ہے ڈرائیور کے ساتھ گئی ہو، آفرین بیگم نے اس کی بڑھتی سنجیدگی بھانپتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک سن گلاسز لگاتے ہوئے مغرورانہ چال کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، جبکہ نجم نے اس کی پشت کو سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جو گھٹنوں میں سردی یہ کب سے سسک رہی تھی، یکدم پزل ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا مگر یہ نہیں مانی، کہتی ہیں چل نہیں سکتی۔ گارڈ بھاری قدموں کی آہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوتے وقت بولا، جبکہ اس کے پیچھے بھی قدموں کی آہٹ سنائی پڑی تھی۔ ڈاکٹر چیک کریں۔ وہ جلدی سے آواز کی سمت دیکھ گئی تھی۔ یہ آواز تو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، پوری دنیا میں وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ آپ پلیز لائٹ سوئچ آن کر دیں اور کوئی کھڑکی کھول دیں، کمرے میں دم گھٹتا ہوگا، بالکل بھی ہوا نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر گارڈ نے لائٹ سوئچ آن کیا تھا اور کھڑکی بھی کھولی تھی۔ بے چینی سے وہ اس سمت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا ستمگر بے صبری سے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ وائٹ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، کلائی پر برانڈڈ گھڑی باندھے، وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں رکھے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ سنہرے بال جیل سے خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے، دودھیا سفید رنگت، وہی پلکی موڑوں کے سائے میں سنجیدہ ہیزل گرے آنکھیں۔ آج ان میں کہیں نہ کہیں ہمدردی تھی اور طنز تھا۔ وہ مسکرانا چاہتا تھا اس کی بے بسی پر۔ کسی قلم کی نوک سے بنائے گئے ہلکی بیئرڈ میں انتہا کا حسین چہرہ، اس کے کٹاؤ دار لب جنہیں وہ بھینچے سے ہی دیکھ رہا تھا، انتہا کا حسین تھا، مگر تھا تو اس کا ستمگر۔ وہ بے بس نظروں سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، لیکن خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ رک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی۔ ڈاکٹر بھی اسے ہمدرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زخموں سے چور تھی، بکھرے بال، رنگت جو گندمی ہو گئی تھی، میلے کپڑے، اجڑی حالت۔ ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی نظر سے پیچھے دیکھا، جس پر وہ 2 قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ کیا آپ شروع سے ہی نہیں چل سکتی؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ لڑکی ایک بار پھر اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ نہیں، یہ پہلے ٹھیک تھی، کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھا رہی۔ اور کیا الیکٹرک شاکس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے؟ گارڈ کی بات پر ڈاکٹر کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اٹس پاسبل، اگر زیادہ مقدار میں الیکٹرک شاکس بغیر کسی ٹریٹمنٹ کی غرض سے دیے جائیں تو دماغی اور جسمانی طور پر انسان نارمل ایکٹیویٹی سے ڈسمس ہونے لگتا ہے۔ گارڈ نے اپنے مالک کی طرف دیکھا تھا، جسے ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا سن کے۔ وہ تو یہی چاہتا تھا، یہ لڑکی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس کا مطلب یہ لڑکی اب کبھی نہیں چل پائے گی؟ گارڈ نے فکر سے کہا۔ ہو سکتا ہے، اگر پریزنٹ ریٹ پر انہیں ایسے فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا تو مکمل ڈسیبل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ جا سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ندیم آپ کو لے آئے گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ گارڈ اور ڈاکٹر کو لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ گھٹنے ٹیکتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ گھبراتے ہوئے ہتھیلیوں کو رگڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ سرد لہجے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے بولا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور موتی کی طرح اس کے میلے چہرے سے بہہ گئے تھے۔ یو آر ڈائنگ، افسوس۔ وہ اس کے چہرے کو قریب لاتے ہوئے گویا ہوا، مسلسل اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی۔ ابھی مار دے مجھے، وہ دھیمے سے بولی۔ وہ پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر رکھ چکا تھا۔ مار دیں، آنکھیں میچتی کے ساتھ بولی تھی، جبکہ وہ جو اسے تنگ کرنے کی نئی ترکیب سوچ رہا تھا، اچانک پسٹل کو دھیرے سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی گردن سے دبوچ چکا تھا۔ جانتی ہوں میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، چاہے تمہارے جسم میں خون کی ایک بوند باقی نہ رہے، تم سڑ جاؤ، لیکن یہ سانسیں چلنی چاہیے ہر حالت میں۔ تمہیں ان اذیتوں سے گزارنا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھی اور محسوس کی ہیں، بکھرے سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے اور قریب کر چکا۔ خوف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ خوف بننا چاہتا ہوں تمہارا، جیسے تصور کرتے ہی تم لرز جاؤ، جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ڈر ہو، جو تمہاری تباہی کی وجہ ہو، جسے سوچ کر تمہارا دل دھڑکنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی سرخ نم آنکھوں سے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر ایک ہی سوال کر رہی تھی، میرا قصور کیا تھا؟ بالوں سے انگلیوں کو نکالتے ہوئے اور سنجیدگی سے
पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए खड़ा था। साहब आपने बुलाया? एक मुलाजिमा अंदर आते हुए बोली थी। जबकि लड़की की ये हालत देखकर इसका खून सफेद हुआ था। इसका इतना ख्याल रखें कि ये 2 दिन में चलने लायक हो जाए, इसके बाद आपको आपकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी और आपको यहाँ काम करने की भी ज़रूरत नहीं। वो हुक्म देता हुआ कमरे से चला गया था। इसके ठीक जाते ही खिड़की से एक साया गुजरा था। इसके जाते ही मुलाजिम सितमगर गुजरा था। मरजान काज़मी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में सबसे पहला। पूरी दुनिया जानती है इतना बड़ा रईस पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पूरी 3 कंपनियां संभालता है और वो भी दुनिया में टॉप पर चल रही हैं। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, मगर इससे हमसे है। पिछले कुछ महीनों से हमारा काम बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ड्रग सप्लाई नहीं हो रही, धंधा ठप हो चुका है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे आदमी पकड़े गए हैं, कुछ मारे गए हैं, कुछ कैद में हैं। इस दरिंदा सिर्फ मरजान काज़मी को मैं जानता हूँ हमारे आदमियों से एक एक लफ्ज़ निकलवा लेगा, लेकिन इससे पहले वो हम तक पहुँचे हमें इस तक पहुँचना होगा। एक अंधेरे कमरे में बड़ी स्क्रीन पर मध्यम रोशनी में मरजान काज़मी की फ़ोटोज़ और डिटेल्स की वीडियो चल रही थी और अंधेरे में छुपी एक शख्सियत इस पर तबसरा करके पूरे कमरे में मौजूद लोगों को इसकी शख्सियत से आशना करा रही थी। इनके चेहरे अंधेरे में छुपे थे। तभी टेबल पर पड़े फ़ोन पर बेल बजी थी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है, मरजान काज़मी इस वक्त पाकिस्तान में है, अपने किसी खुफिया फार्म हाउस में पर मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, निकलने ही वाला है। ब्लैक मर्सिडीज है, कार का नंबर मैसेज कर लोकेशन के साथ। और फिर सिगरेट का कश लेते हुए वो शख्स कुर्सी पर बैठते हुए भारी आवाज में बोला था, बॉम्ब। दूसरी तरफ मकरूह कहका सुनाई दिया था। दोनों फोन पर कहका लगाते हुए हंसे थे। इससे बिल्कुल परवाह नहीं मेरी। जोनी मुंह बनाते हुए अपनी सीट पर बैठी थी, जबकि इसकी दोस्त ने चिमगम का बबल फोड़ते हुए इसे घूरा। तो तुम इसके पास जाने की कोशिश करो ना, आखिर कब तक इससे डरती रहोगी? इसकी दोस्त रिदा ने मशवरा दिया। बस करो, पूरे घर वाले यहाँ तक कि डैड भी इसके घूमे फिरे दिमाग से वाकिफ है। एक बार ठान ले तो किसी की नहीं सुनता, और गुस्सा तो इसका दूसरा नाम है। जोनी ने किताब गुस्से से खोलते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। जोनी रिदा की तरह मुखातिब हुई और वो इसे धीरे धीरे कान में उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने लगी और जोनी हाँ में सारी लाती हुई मुस्कुराई। सर आप आ गए? आप गए नहीं? नदीम जो कि इसका स्पेशल गार्ड था, काफ़ी का कप इसके सामने टेबल पर रखते हुए पूछा। मैं इसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वो काफ़ी का कप उठाते हुए संजीदगी से बोला, लेकिन सर ऐसा फैसला अचानक क्यों? कोई मुझ पर नज़र रख रहा है और आज फार्म हाउस में कोई आया था जिसे तुम में से किसी ने नहीं देखा। मेरे पास पिस्टल थी, मैं इसे मारना चाहता तो मार सकता था। वो काफ़ी का सिप लेते हुए लब पींच चुका था। मुलाजमा इस लड़की को लिए गार्डन में इसे चलाने की कोशिश कर रही थी और वो कमज़ोरी की वजह से लड़खड़ा रही थी। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी? मैं अभी सिक्योरिटी टाइट कर देता हूँ और इसकी डिटेल निकालता हूँ। लेकिन आपने इसे मारा क्यों नहीं? नदीम ने हैरत से पूछा। इसने ज़रूर बैकअप को इतला दी होगी। वो मेरी लोकेशन जानते हैं और मुझे मारने के लिए भी ज़रूर निकलेंगे। गार्ड परेशान हुआ, लेकिन अपने मालिक मुतमईन और पुरसकून देखकर हैरान भी हुआ था। वो जानता था इसे तो कुछ नहीं होना था, लेकिन आने वाले की आज मौत लाजिम में मलजूम हो गई थी। चुकी हूँ, कम खाया कर। अब कोई मानता ही नहीं कि मैं तुमसे पूरे 30 मिनट बड़ी हूँ। अलीजा ने मुंह फुलाते हुए निशाल के हाथ से गोलगप्पे की 5वीं प्लेट खींच कर टेबल पर रखी थी। मामा देखे ना, ये फिर से बड़ी बहन होने का ताना दे रही है। निशाल ने भरपूर एहतजाज किया था, जबकि कशमाला बेगम ने दोनों को तीखी नज़रों से घूरा था, जिस पर दोनों खामोश हो चुकी थी। इतनी बड़ी हो गई हो दोनों, मगर हैरत है कि ज़रा बराबर अकल नहीं आई। अरे मैं तो तुम दोनों को ब्याहने का सोच रही थी। मगर निशाल ने कशमाला बेगम की बात काट दी। हाँ तो अलीज़ा आप ही मुझसे बड़ी हैं, पहले इनको ब्याह दो, मेरा तो होता रहेगा बाद में। निशाल ने मुंह बसोरा और अलीज़ा को देखकर बराबर छेड़ा, जिस पर वो गुस्से से उठकर और रूम की तरफ चली गई थी। आपको दूसरों की औलाद से फिर फुर्सत मिल जाए तो अपनी औलाद का भी सोच लेना। शान ने ऑफिस की फाइल कशमाला बेगम के सामने मेज़ पर पटकते हुए कहा, अपनी बकवास बंद रखो। जानते हो अगर किसी ने तुम्हें सुन लिया ना तो आफत आ जाती। कशमाला बेगम ने आंखें फैलाकर गुस्से से कहा, जिस पर शान हाथ से रहने दो का तंज़िया इशारा करता हुआ वहां से चला गया। कुछ करना होगा। निशाल ने आध मुंह खोलकर अपनी माँ को देखा, जो गहरी सोच में गर्क हो चुकी थी। मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम कौन और इन सब साहिब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुलाजमा ने इस लड़की को हाथ से पकड़कर सहारा दी और पूछा। हमारा कोई ताल्लुक नहीं इनसे, और जहाँ तक हम कौन है की बात है वह माना नहीं रखता। हम सब खो चुके हैं। धीमे से लहजे में कहती हुई वो बागीचे में नज़दीक पड़ी सीमेंट के बेंच के सहारे बैठी थी। फिर वो तुम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? तुम इनके आगे कुछ बोलती भी नहीं हो, और तुम भाग क्यों नहीं जाती यहाँ से? हम यहाँ से भाग कर जाएंगे तो भी तो कहाँ, सब बर्बाद हो गया। लड़की की आंखों में आंसू की नमी सी चमकी थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे फरजाना कह सकती हो। हमारा नाम ताबीर है। वो मुख्तसर सा कहते हुए रुकी थी। सर्द निगाहों से वो टेरेस पे
पर खड़ा न जाने कब से इन दोनों को देख रहा था। मैं आपको बीजान कह सकती हूँ, आप उम्र में बिल्कुल मेरी बीजान जैसी हैं। मुलाजिम ताबीर को हमदर्दी की नज़रों से देखा था। कितनी मासूमियत थी इस लड़की में। हाँ बेटा बिल्कुल बुलाओ, मगर सर के सामने ख्याल रखना। वो कॉफ़ी का मग टेरेस की दीवार पर रखते हुए उठा था। आसमां पर काले बादल उमड़ आए थे और ठंडी हवा भी चल पड़ी थी। ताबीर ने एक बार फिर न जाने क्यों टेरेस की तरफ देखा था। हवा की वजह से इसके सुनहरी बाल बार बार इसकी पेशानी पर बिखर रहे थे। वो किसी एक नुक्ते पर गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक गार्ड सर झुकाए इसके करीब रुका हुआ था। ताबीर ने इसके लबों को हलते महसूस किया। वो बगैर इसकी जानब देखे संजीदगी से गार्ड को कुछ कह रहा था। गार्ड सर झुकाते हुए वापस चला गया। कुछ ही देर में वही गार्ड नीचे आया था। सर का ऑर्डर है, आप फार्म हाउस के अंदर रहें, मौसम ख़राब होने वाला है, हम कुछ देर रुकना। फरजाना ने ताबीर का हाथ थामे हुए इसे खामोश रहने का इशारा किया था। वो इसके सहारे छोटे छोटे कदम उठाती फार्म हाउस के अंदर चली गई थी। गार्ड दोनों को वापस भेजकर जा चुका था। नदीम कुछ पता चला? अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर वो संजीदगी से पूछ बैठा था। नहीं सर, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये तीसरी बार हुआ कि एक एक घर ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। तो पूरी दुनिया में ढूंढो, दुनिया के हर एक कोने में इसे तलाशो, लेकिन मुझे वो हर हाल में चाहिए। इसके सख्त लहजे पर नदीम एक से दो कदम पीछे हटा था। वो मरजान के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आपको वो मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। नदीम इतना कहकर चला गया था। वो जानता था इसका इलाज सिर्फ तन्हाई है, वरना वो सब तबाह बर्बाद कर देता है जो इसे नजर आता है। बारिश शुरू हो चुकी थी और तेज ठंडी हवा अपने जोर शोर पर थी। ऐसा लगता था जैसे किसी के दिल का हाल बयां कर रही हो। वो अपना वाइट कोट उतार कर सोफे पर रखते हुए शर्ट के बाजू कोनियों तक मोड़कर बारिश की आगोश में आया था। ठंडी पुरसकून बूंदें इसके बेसकून वजूद में जैसे सकून की एक लहर छोड़ रही थी। वो आंखें बंद करते हुए इस एहसास से आशना हो रहा था जो इसके जीने की वजह थी। रुको, भागो मत, हम पहले भी गिर गए थे। ममा ने कहा था बारिश में भागना नहीं चाहिए, रुको वरना मैं मामू से आपकी शिकायत करूंगी। वही मासूम खुशगवार खिलखिलाहटें इसके कानों में गूंजी थी। इसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में से मिलते हुए गुम से गए थे। आह, एक दर्दनाक और गराहट और गुस्से के साथ वो टेरेस पर मौजूद फूलों के वास समेत सब कुछ तोड़ रहा था। मुझे फूल पसंद है, इन्हें मत तोड़ो, फिर से एक मासूम बारीक आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। वो दोनों कानों पर हाथ रखते हुए दर्द और बेचैनी से धड़ा, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती तुम? वो सदमे से नढाल घुटनों के बल ढह से गया था। जबकि गार्ड जो इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आए थे इसे इस हालत में देखकर फौरन वहाँ से चले गए थे। वो इसके दर्द से शायद आशना थे। वो जानते थे मरजान काज़मी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, ना ही इसे किसी की तसल्लियाँ चाहिए। वो बर्दाश्त कर सकता था जैसे बचपन से करता आया था। नहीं मामा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना है। वो दर्द से नढाल हो रहा था। दिल में उठता हुआ दर्द इसे तकलीफ दे रहा था। बमुश्किल को लड़खड़ाते हुए वो उठा। बारिश इसे मुकम्मल भिगा चुकी थी। वो कमज़ोर नहीं था, मगर इसमें दिल था, हर इंसान की तरह। पूरी दुनिया के सामने वो मरजान काज़मी था जिसे किसी का खौफ नहीं था, जिसकी कोई कमज़ोरी नहीं थी। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे तक पहुंचा था। दरवाजे को सख्ती के साथ बंद करते हुए बेड तक आया और कबर्ड का दरवाज़ा खोला था, लेकिन शायद इसे वो चीज़ नहीं मिली थी जो वो ढूंढ रहा था। क्या वो अपनी दवाई ढूंढ रहे हैं? एक गार्ड ने, जो शायद नया था, दूसरे गार्ड के कान में धीरे से पूछा था, जबकि दूसरे गार्ड इसे जल्दी से विंडो से खींचकर वहां से ले जा चुका था। वो अच्छे से जानता था अगर इस वक्त इन दोनों को वो देख लेता तो दोनों की मौत तय थी। नदीम, वो गुस्से से गिर जा। सर, नदीम जल्दी से अंदर आया था। वो बेड के सहारे नीचे बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख थी। वो कहाँ है? वो गुस्से से गराए। सर माफ़ कर दें, सुबह जब आपने बैग्स मेड को देने के लिए कहे थे, शायद मैंने वो गलती से इस लड़की को दे दिया। नदीम की आवाज़ कांप रही थी। वो जानता था कितनी बड़ी गलती हुई थी इसे। अब वो यकीनन जान से हाथ धो बैठने का सोच रहा था। अम्मी मरजान कहाँ हैं? कशमाला बेगम ने भवें अचकाकर जोनी को देखा, जो कॉलेज से आते ही मरजान का पूछ रही थी। वो ऑफिस है, हमेशा की तरह। एक मिनट, तुम सुबह कॉलेज किसके साथ गई थी? बच्चे, हम पता है कितना परेशान थे हम। कशमाला बेगम ने जोनी की पेशानी पर बोसा देते कहा। वो मरजान भाई ने मना कर दिया था तो हम ड्राइवर के साथ गए थे। अच्छा अम्मी, बाबा की तरह? बेटा वो मीटिंग के लिए गए हैं, आते ही होंगे। कोई बात है तो मुझे बता दो। कशमाला बेगम ने जोनी को गले लगाया। हाँ, मगर मैं आपको अकेले नहीं बताऊंगी। अब तो जो बात होगी डैडी के सामने ही होगी। ओके। जोनी जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी थी। कुछ तो चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, मुझे पता लगाना पड़ेगा इससे पहले बात मुनव्वर तक जाए। कशमाला बेगम सोचते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी, जबकि इनके जाते ही निशाल चुपके से किचन में घुसी, फ्रिज से सफाई करने की नीयत के साथ।
بیٹا یہ کپڑے مجھے دے دو، میں ان کو دھو دوں گی۔ اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ طبیعت بہتر ہوئی؟ فرزانہ نے تعبیر سے پرانے کپڑے لیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے تو بہتر لگ رہا ہے امی جان، آپ نے بالکل درست کہا تھا، ہم فریش ہو گئے۔ تعبیر نے گیلے بالوں سے ٹاول نکال کر دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور آئینے میں اس نے خود کو ایک نظر دیکھا۔ بہت دنوں بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ وائٹ سمپل سوٹ میں اور اوپر ریڈ چنری دوپٹہ پہنے اس کی گندمی رنگت نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ یکدم روم کا دروازہ زور سے کھلا۔ ندیم اس سے پہلے کچھ کہتا تعبیر کو اس دوپٹے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ یہ دوپٹہ مجھے واپس کر دے جلدی، ندیم نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ تعبیر نے خوف سے دوپٹے کو مٹھی میں کس کے پکڑا تھا۔ ٹائم نہیں ہے، پلیز واپس کریں۔ ندیم خود اس کے گلے سے دوپٹہ نہیں نکال سکتا تھا، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بری کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ فرزانہ حیران و پریشان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ندیم اس سے پہلے ندیم کچھ اور کہتا، اس کے قدم جم گئے تھے مرجان کی آواز سن کر۔ آپ پلیز باہر چلیں۔ وہ فرزانہ کو لے کر فوراً روم سے نکلا تھا، جبکہ تعبیر کے ہاتھوں میں ٹھنڈا پسینہ آیا تھا اس کی آواز سن کر۔ ہائے نشال، جلدی سے کھا لے، کوئی آ گیا تو بلاسٹ ہو جائے گا۔ جلدی جلدی آئس کریم کا دوسرا ڈبہ چاٹتے ہوئے بھرے منہ سے بولی، جبکہ کچن میں آتا ہوا نجم برتنوں میں کے بیچوں بیچ گولڈن بالوں والا سر دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نجم نے غصے سے پوچھا، کیونکہ ابھی ابھی اس کا دل نشال کے گولڈن بال دیکھ کر حلق میں آیا تھا۔ اسے لگا کوئی سنہری ٹیل والا جانور کچن میں آ دھمکا ہے۔ وہ نہ نجم بھائی بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وہ الٹا سیدھے ہی بول پائی تھی، جبکہ اس موٹی بلی کو دیکھ کر نجم کا منہ کا زاویہ خراب ہوا تھا۔ آپ کھاؤ گے؟ آئس کریم کا خالی ڈبہ اس کی جانب کرتے ہوئے بتیس نکالتے ہوئے بولی، جبکہ خالی ڈبہ دیکھ کر نجم نے بھویں چکا کر اسے گھوری سے نوازا تھا۔ مطلب وہ اکیلے ہی اس سردی میں ایک پورا فیملی پیک کا ڈبہ کھا گئی تھی۔ اس کی حیرت تب بڑھی جب اس نے ٹیبل پر دوسرا ڈبہ خالی دیکھا کہ اس دن پھٹ جاؤ گی غبارے کی طرح، نجم نے تپ کر کہا، جس پر نشال نے رونے والی شکل بنائی۔ ہاتھی کا بچہ پال رکھا ہے ہم نے گھر میں۔ وہ منہ بڑبڑاتا وہ پیچھے جانے کے لیے مڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ہاتھی کا بچہ ہوں؟ نشال سلپ ہوئی تھی۔ کھاتے وقت تھوڑی آئس کریم نیچے گری تھی جس پر نشال کا پیر آیا تھا۔ مار ڈالا مجھے۔ نشال جلدی سے نجم پر سے اٹھی تھی۔ نجم کمر پکڑتے ہوئے درد سے سسک پڑا تھا، اتنا بڑا ہاتھی جو گرا تھا اس پر، جبکہ نشال شرم سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ نجم نے کمر پکڑ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا جو اس کی کمر توڑ گئی تھی، جبکہ پلر کے پیچھے چھپی زالے کا فلک شکاف کہکہ سن کر نجم شرم سے لال ہوا تھا۔ ہا 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 ہا، رومانٹک، زالے کہہ کر وہاں سے ہوا کی طرح بھاگی تھی۔ کچھ پتہ چلا کیا؟ وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اچھا ٹھیک ہے، کب تک چھپے گا؟ کبھی تو باہر آئے گا۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے وہ شخص فون پر بولا۔ ہاں نظر رکھو، پل پل کی خبر چاہیے۔ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد اس نے غصے سے سگریٹ پھینک کر اس پر پیر رگڑا تھا۔ چاہے اسے شک ہو جائے، چاہے وہ سیکیورٹی جتنی بڑھا دے، مجھے مرجان کاظمی کی موت کا اعلان سننا ہے۔ بولتے ہوئے اس کے منہ سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج ہوا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلے اس کے گارڈز کو، اس کی گاڑی، سب پر اتنی گولیاں چلنی چاہیے کہ ہواؤں میں خوف کی ایسی لہر دوڑ جائے کہ آئندہ مرجان کاظمی جیسا شخص اس دنیا میں جنم لینے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اندھیرے کمرے میں وہ ایک دروازے کے پیچھے غائب ہوا تھا۔ سخت غصے میں وہ زوردار آواز سے دروازہ کھول چکا تھا۔ فرزانہ نے لاؤنج میں دروازہ کھلنے کی آواز سن کر دل ہی دل میں تعبیر کے لیے دعا کی تھی، نہ جانے کیا ہوگا اب۔ وہ سوچتے ہوئے کانپ گئی تھی۔ تعبیر نے خوف بھری نظروں سے اس کی حالت دیکھی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور اس کے بھیگے ہوئے کپڑے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ دوپٹہ لینے کی؟ اس کے گلے میں وہ دوپٹہ دیکھ جو کر اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی، جبکہ تعبیر نے خوف سے اپنی گردن پر پہنے دوپٹے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ساتھ ہی اس سے اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! آئی سویئر آج میں جان لے لوں گا تمہاری! کسی زخمی شیر کی طرح وہ اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کے غصے کی شدت سخت گرفت کی صورت میں تعبیر نے اپنے کندھے پر محسوس کی تھی۔ تعبیر نے خوف سے آنکھیں بھینچی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، اتارو اسے، واپس کرو مجھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خود کو کمپوز کر گیا، تب پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے تعبیر کی طرف ہاتھ بڑھایا دوپٹہ لینے کے لیے۔ تعبیر نے دوپٹے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے سر کو نام میں جنبش دی تھی۔ آئی سیڈ دوپٹہ دو مجھے! وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا چکا تھا، غصے کی شدت سے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تعبیر ڈرتے ہوئے پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ تو تم چاہتی ہو یہ میں اپنے طریقے سے واپس لوں؟ وہ سرد لہجے میں اس کی دائیں بائیں جانب دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرار ہونے کے راستے بند کرتے ہوئے گویا ہوا، ایسا مت کریں سر پلیز! وہ کانپتی آواز میں اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر یکدم خوف سے نظریں جھکا چکی تھی۔ آج تک پچھلے 3 سالوں میں آپ جو کچھ کرتے آئے ہیں ہم نے برداشت کیا، ایک سوال تک نہیں کیا۔ ہم خود کو آپ کا گناہ گار تک مان بیٹھے تھے کہ شاید ہی ہم سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ہوا جس کی قیمت، جس کا گناہ کا خمیازہ ہم آج اس صورت میں بھگت رہے ہیں۔
नजरें झुकाते हुए वो बोलती गई और वो सपाट नजरों से लब नीचे से देख रहा था और खामोशी से सुन रहा था। आपने हमें थप्पड़ तक मारे, हमें मेंटली टॉर्चर किया, हम तब कुछ नहीं बोले, लेकिन आज आप हमारे गले से हमारा दुपट्टा मांग रहे हैं जो आपको कभी नहीं देंगे हम। वो नजरें उठाते हुए इसकी सुर्ख आंखों में आंखें डाल गई थी। वो सर्द नजरों से इसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए दिल ही दिल में इसकी हिम्मत की दाद दे रहा था। इतनी कमजोरी भी नहीं थी वो, इतनी कमजोर भी नहीं थी वो। पूरी दुनिया मरजान काज़मी की आंखों से आंखें मिलाने से खौफ खाती थी। आज हमें जवाब चाहिए, किस बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? क्यों नहीं छोड़ देते हमें? क्या कसूर है हमारा? कसूर की बात करती हो तुम? कसूर मेरा भी नहीं है, कसूर मेरी फैमिली का नहीं था। वो कड़कदार लहजे में बोला था। इसकी कहर बरसाती धड़ पर ताबीर की हिम्मत जवाब दे गई थी। इसका खड़ा रहना महाल हो रहा था और वो दोबारा पैरालाइज हो रही थी। इसका वजूद कांप रहा था। जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या किया? तुम्हारे बाप ने मेरी हंसती खेलती फैमिली उजाड़ दी। और जानती हो क्या किया? एक 10 साल के लड़के से इसकी फैमिली, इसकी कुल कायनात छीन ली। एक 10 साल लड़का अपनी आंखों से अपना जलता घर देखता रहा, अपनों की दर्दनाक चीखें सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मुट्ठी भींचते हुए वो दीवार पर जोर से मारते हुए को कहर भरी नजरों से इसे देख रहा था। इसके बालों में सख्ती से उंगलियां फंसाते हुए वो इसे नफरत से दीवार से लगा चुका था। जिस इंसान ने दौलत के लिए कई मासूम जानवरों को मौत की नींद सुला दिया था, क्या मेरे इतना हक नहीं बनता कि मैं इसकी अकलौती बेटी को टॉर्चर करूं? इसके चेहरे को हाथ से जकड़ते हुए सपाट लहजे में बोला। अकलौती? तबस्सुम आपी? वो ठीक है, डैड ऐसा नहीं कर सकते। वो पैरालाइज होते ही खौफ से दोबारा बेहोश हुई थी, जबकि वो एक नाम मरजान काज़मी के दिल की धड़कन बढ़ा चुका था। डैम इट, उठो! इसके चेहरे को सख्ती से थपथपाते हुए बेचैनी से गोया हुआ। नदीम डॉक्टर को बुलाओ अभी। नदीम खुद डॉक्टर को लेने चला गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ब्लैक ग्लासेस लगाते हुए एक बैग के साथ एयरपोर्ट से बाहर आई थी। स्लीवलेस ब्लैक शर्ट, नीचे ब्लैक स्टाइलिश पैंट, रेड हाई हील्स, कंधे तक आते गोल्डन बाल, दूधिया रंगत चेहरे पर ढेर सारा मेकअप थोड़ा अजीब लग रहा था। डार्क रेड लिपस्टिक इसी लाइट से ज्यादा डिम दिखा रही थी। तुम्हें मना किया था पाकिस्तान आने से, बेवकूफ लड़की। इसे किसी ने खींचकर व्हाइट मर्सिडीज में बिठाते हुए कहा था, मुझे डैड से मिलना था। अंकल व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरा इनसे राब्ता नहीं हो रहा, आपका नंबर बंद था। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू यार? वो ग्लासेस उतारते हुए गुस्से से बोली थी, जिस पर इसकी सियाह आंखें वाजे हुई थी। बेवकूफ लड़की, तुम कुछ नहीं समझती हो। तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की। ड्राइवर, तुम होटल की तरफ चलो और तुम वहाँ पहुंचने तक एक लफ्ज नहीं बोलोगी। वो वट एवर कहते हुए आंखों पर दोबारा ग्लासेस लगा चुकी थी। गाड़ी तेजी से रोड पर दौड़ी थी। काज़मी मैंशन। डैड, हमारी बात सुने ना प्लीज। जोनी ने मुनव्वर साहब को गले लगाते हुए खफगी से कहा। यस माय प्रिंसेस। मुनव्वर साहब ने फाइल साइड पर रखते हुए पूरी तवज्जो बेटी पर मरकूज की थी। डैड, हमें कुछ चाहिए और वो हमें सिर्फ आप ला कर दे सकते हैं। जोनी ने मुनव्वर साहब का हाथ पकड़ते हुए लाड से कहा, जिस पर मुनव्वर साहब को बेटी पर रज कर प्यार आया था। हमारी प्रिंसेस को क्या चाहिए? बोले, हम अभी ला कर देते हैं। सच? जोनी खुशी से चखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, पहले कभी आपको मना किया? बोले, आपको क्या चाहिए बच्चे? डैडा, हमें मरजान चाहिए, हम बहुत प्यार करते हैं इनको, आप हमें मरजान ला कर दें बस। इसकी फरमाइश पर मुनव्वर साहब कदरे संजीदा हुए थे। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारी बच्ची शादी के बाद हमारे साथ ही घर रह जाएगी, हमारे साथ ही रह जाएगी। और जहाँ तक मरजान को मनाने की बात है, वो मुनव्वर की बात कभी नहीं टालेगा। वो जैसे ही घर आ रहा है, हम दोनों इससे बात करेंगे और इसी हफ्ते अपनी बच्ची की एंगेजमेंट कर देंगे। खुश? कशमाला बेगम ने रूम में आते हुए कहा, जबकि मुनव्वर साहब काफ़ी संजीदा लग रहे थे मगर कुछ बोले नहीं थे। जोनी ने खुशी से चखते हुए कशमाला बेगम को गले लगाया था। आफरीन बेगम दरवाजे से ही वापस लौट गई थी बगैर कुछ बोले। वो अब दीदा हो गई थी, इनकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं अपनी औलाद, अपनी सगी बेटी का फैसला करने में मामूली राय देने का भी हक नहीं रखती? वो आंसू पूछते हुए खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। मरजान चेंज करने के बाद सीधा ताबीर के रूम में आया था। डॉक्टर इसकी नब्ज देखकर चेकअप के बाद नदीम से कुछ कह रहा था, जबकि फरजाना ताबीर के पास बैठी हुई इसे हमदर्दी की नज़रों से देख रही थी। इनको फोबिया हो सकता है, जिस तरह आपने बताया। इनका बार बार फिनिट हो जाना, वजूद का कांपना, सर चकराना, पसीना आना, ये खौफ की वजह से, और ब्लड प्रेशर भी बहुत गिर गया है डिप्रेशन की वजह से। ये कुछ दवाएं इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। नदीम डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया था, जबकि मरजान छोटे छोटे कदम लेता हुआ ताबीर तक आया। वो अभी तक बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये क्या कर रहे हो आप? फरजाना ने घबराकर मरजान से पूछा और खुद खौफ से बेड से उतरी थी। मरजान अजीब किस्म की वायरस ताबीर की कलाई पर बांध रहा था और पैरों में भी बांधी थी। अगर आपसे देखा नहीं जाता तो बाहर वेट करें। वो चेयर खींचकर ताबीर के बराबर रखते हुए सर्द लहजे में बोला था। फरजाना घबराते हुए फौरी तौर पर बाहर निकल गई थी। वो एक नज़र संजीदगी से इस बेहोश पड़ी लड़की को देखते हुए पॉकेट से एक रिमोट कंट्रोल निकाल चुका था।
सॉरी प्रिंसेस बट वेक अप नाउ। इसने एक बटन दबाते हुए इसकी जानिब देखा। ताबीर का पूरा वजूद लरज उठा था। आंसू इसकी आंखों से बहते हुए कुशन में जज़ब हुए थे। इसका पूरा वजूद करंट पर कांप उठा था। बहुत बेहिस इंसान है आप। ताबीर की भराई हुई आवाज़ और टूटे बिखरे लहजे पर वो इसके पास चेयर पर बैठा था। तबस्सुम कौन है, कहाँ है, जानती हो इसके बारे में सब बताओ, वरना आज इन शाख से तुम्हारी जान निकल जाएगी। इनका भी बता दूं ताकि इन्हें भी ऐसे टॉर्चर करें। वो नफरत भरी नज़रों से इसे देखते हुए बोली, जबकि इसने सर्द नज़रों से इसे देखते हुए रिमोट का बटन दबाया। इस बार पहले से भी कई गुना ज़्यादा चार्ज ताबीर को छू गुजरा था। ताबीर ने आंखें मीचते हुए दर्द सहा था। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी तरह इनको टॉर्चर नहीं करने दूंगी। वो दर्द से सिसकती हुई चीखी। वो गुस्से से रिमोट दीवार पर मारे इसे कंधों से जकड़ चुका था। इसकी सख्त उंगलियां ताबीर को अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हुई। हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। अगर हमें मालूम भी होता हम फिर भी आपको हरगिज़ ना बताते। ताबीर ने इसकी हैज़ल ग्रे आंखों को देखकर कहा जो सुर्ख होती जा रही थी। मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, मैं इस मामले में बेहद ख़राब हूँ। इससे पहले मेरी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाए सब बता दो। कहर बरसाती नज़र से वो इसके कंधों पर गिरफ्त सख्त करते हुए गोया हुआ। ताबीर ने पहली बार इसकी आंखों को इतने करीब से देखा था। बेहद हसीन थी इसकी आंखें, एक एक नकूश। लेकिन इस वक्त वो क्या सोच रही थी। वो इसे सख्ती से छोड़ चुका था। ताबीर का सर बेड के क्राउन से लगा। वो सिसकी थी। वो जाने के लिए एक कदम पीछे हटा। जब ताबीर ने इसका हाथ अपने कांपते हुए हाथों से थामा, वो संजीदगी से रुका था इसकी आंखों में देखते हुए। आखिर क्यों रोक रही थी इसे। मुबारक हो आपको, आप मेरा सबसे बड़ा खौफ बनना चाहते थे ना, आप बन गए सर। मेरा सबसे बड़ा डर जो मुझे मौत के करीब ले जाकर एकदम से पीछे खींच लेता है, मुझे जिंदगी और मौत के बीच रखता है। वो सिसकते हुए बोली। मरजान ने सख्ती से आंखें भींची थी। कुछ देर वो इससे आंखें मिलाने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर फिर नफरत से इसका हाथ झटकते हुए कमरे से जा चुका था। ताबीर ने होठों को सख्ती से कुचला और रोते हुए कुशन में सर दिया। कुशन ने इसकी दर्द से भरी चीखें अपने अंदर समोई थी। फाइनली हैंडसम, तुम मेरे होने वाले हो, सिर्फ मेरे। जोनी ने मोबाइल पर मरजान की फोटो देखते कहा। तुम मेरी जिद थे, मेरी तलब थे, तुम्हें कब से पा लेना चाहती थी मेरी जान। अब और दूरी नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारी आंखें, उफ खुदा कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें मरजान। सोनी ने मोबाइल को सीने से लगाते हुए खिलखिलाकर कहा, दीवानी हूँ मैं तुम्हारी मरजान। कई साल वेट किया इस दिन के लिए, मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई मरजान। काज़मी मेरे बन जाओ। वो इसकी फोटो सीने से लगाकर सो गई थी। रात 2:30 फार्म हाउस। तबीर फरजाना का हाथ पकड़ते हुए इसके सहारे बाहर आई थी। वो संजीदगी से गार्ड्स को कुछ समझा रहा था। फार्म हाउस के गेट के ठीक सामने 5 गाड़ियां रुकी थी। एक ब्लैक मर्सिडीज थी जिसके आगे और पीछे 2 कारें थी जो शायद सिक्योरिटी की थी। चले मिस, गार्ड ने ताबीर के बराबर रुक कर कहा। ताबीर ने एक नज़र इसकी जानिब देखा। जो मर्सिडीज में बैठ रहा था वो कुछ सोते हुए पीछे मुड़ा था। एक सर्द सी नज़र इसने ताबीर पर डाली थी। वो होंठ भींचती हुई पजल से गार्ड के पीछे चल दी थी। गार्ड मर्सिडीज का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। ताबीर की धड़कन बड़ी थी। वो खुद को कंपोज करती हुई मर्सिडीज में बैठी थी। वो नहीं जानती थी कहाँ जाना है, क्या होने वाला है। इसे बस हुक्म दिया गया था कि हम चल रहे हैं, और वो किसी कैदी की गुलाम की तरह सर को खम देती हुई हुक्म पर अमल पैरा हो बैठी थी। वो फ्रंट सीट पर शान से बरजमान था। आगे की 2 गाड़ियां इसकी इशारे पर चली थी। ताबीर के दिल में बेचैनी बड़ी थी। न जाने क्यों अब रास्ता सुनसान हो चुका था। यहाँ आबादी बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क पर बस गाड़ियों की हेडलाइट्स चल रही थी। रुको, वो कोई आवाज़ महसूस करते हुए कार रुकवा चुका था। यकदम कार को ब्रेक लगी थी। ताबीर का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। डैम इट, गेट आउट ऑफ द कार इमीडिएटली। ड्राइवर मरजान की कार रोकते हुए बाहर निकलकर इसकी साइड का गेट खोल चुका था। बीप बीप बीप। ताबीर का दिल हलक में आया था। वो जल्दी से कार से निकलते हुए ताबीर को झटके से कार से निकाल चुका था। बीप 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 बीप। सामने और पीछे की 2 कारें ब्लास्ट हुई थी। ताबीर ने खौफ से भागते हुए आंखें बंद की थी। मरजान ने इसे जोरदार झटके से अपनी जानिब खींचा। बीप। इनके ठीक पीछे मर्सिडीज ब्लास्ट हुई थी। अंधेरे में 5 जलती हुई गाड़ियों ने दिन से रोशनी पैदा कर थी। ड्राइवर ने फौरन फोन निकालकर कहीं कॉल की थी, जबकि इन पर एकदम से चारों तरफ से फायर हुए थे। ड्राइवर सीने पर हाथ रखते हुए साकित होकर सड़क के बीचों बीच गिरा था। ताबीर इसके साकित वजूद को देखकर चीखी। वो हालात की नज़ाकत भांपते हुए इसे लेकर किसी चीज़ के आसरे में आना चाहता था। चारों तरफ से ब्लैक सूट में मलबूस गार्ड्स ने इन पर फायरिंग की थी। हम मर जाएंगे, हमें मार देंगे सब। ताबीर ने रोते हुए इसकी जानिब देख कर कहा। वो एक दरख्त के चौड़े तने की पनाह में थे। वो संजीदगी से चारों तरफ देखते हुए इसे अपने सीने से लगा गया था। हमें मार देंगे, हम नहीं बचेंगे सर। वो इसका कोट मुट्ठी में मजबूती से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, क्वाइट, रोना बंद करो।
नहीं हम नहीं बचेंगे। वो रोते हुए इसके कोट में सर छुपा चुकी थी और वो फरार होने के रास्ते की तलाश में था। फायरिंग बंद हो गई थी। मरजान काज़मी दोनों ने आवाज़ की सिमत देखा था। अगर तुम चाहते हो ये लड़की यहाँ से जिंदा सलामत वापस जाए तो सरेंडर कर दो, और याद रहे कोई होशियारी नहीं, हमारा टारगेट तुम हो, हमारा हदफ ये लड़की नहीं। अगर तुम चाहते हो ये जिंदा सलामत यहाँ से वापस जाए तो फौरन सरेंडर कर दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। ताबीर ने इसके कोट को और मजबूती से पकड़ा था। नहीं हमें नहीं जाना, हम आपके साथ रहेंगे। वो होंठ भींचती हुई इसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोली, जैसे कह रहा हो वैसा करो, यहाँ से चली जाओ। वो इसे खुद से अलग करते हुए संजीदगी से इन लोगों की तरफ देखते गोया हुआ, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, मार देंगे वो तुम्हें भी। इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए इसे समझा रहा था, जबकि वो सर को नाम में जुम्बिश देते हुए रो रही थी। मरजान काज़मी तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुम वहां से बाहर नहीं आए और खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इस लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे। वो सूरज से उठा था। नहीं हमें अकेला मत छोड़ें। वो घबराते हुए इसका हाथ पकड़ चुकी थी। जैसा कह रहा हूँ करो। वह संजीदा हुआ। ताबीर ने धीरे से इसका हाथ छोड़ा था। गार्ड्स पुट डाउन दी गन्स। वो सरेंडर कर रहा है। कमांड मिलते ही गार्ड्स ने बंदूकें नीचे की थी। वो दोनों हाथ उठाए संजीदगी से दरख्त की आड़ से निकला था। इसके पीछे मुखालिफ सिमत में चलती ताबीर डगमगाते कदमों के साथ इससे हर कदम के साथ दूर जा रही थी। वो संजीदगी से गार्ड्स को देख रहा था जो इसके सरेंडर करने पर बेहद हैरान थे। वो चलते हुए गार्ड्स के बिल्कुल सामने रुका। किल दी गर्ल। ताबीर के कदम जम से गए थे। मरजान के मिल जाते ही कमांडरान चार्ज ने चाल बदली थी। एक गार्ड ने ताबीर के सर पर गन रखी थी। मरजान ने खूनखार नजरों से इस गार्ड की जानिब देखा था। इफ यू ब्रेक योर प्रॉमिस सो विल आई। वो कड़कदार लीजिए में कहते हुए कोट की पॉकेट से 2 पिस्टल निकालते हुए गार्ड पर फायर कर चुका था। खामोश फिजा में 2 गोलियां एक साथ चली थी। खून का एक फौरा कमांडर के सर के बीचों बीच निकला और वो साकित होकर जमीन पर गिरा, जबकि दूसरी गोली इस गार्ड को सीने में लगी थी जो ताबीर पर गोली चलाने वाला था। गार्ड्स में खौफो हरास फैल गया था। वो दोनों हाथों में पिस्टल लिए ताबीर की तरफ तेजी से बढ़ा था, जो बेचारी गार्ड्स के मर जाने पर सदमे से माथा पीटने को तैयार खड़ी थी। इसके पीछे फायरिंग की बौछार हुई थी। वो तेजी से ताबीर को खींचते हुए एक पत्थर के पीछे आया था। आपने मार दिया इनको। वो खौफ से आंखें फैलाते हुए इसे घूर गई थी। अगर अब तुम चुप ना हुई तो मैं तुम्हें भी इनके पास पहुंचा दूंगा। वो मसनू गुस्से से इसे डरा चुका था। वो मुकम्मल चुप हो गई थी। यहाँ से 1 इंच मत हिलना, इसे हुक्म देते हुए पिस्टल लोड करते हुए जलती हुई गाड़ियों की तरफ बढ़ा था। रुको। निशाल जो दबे पांव किचन से निकल रही थी नजम की आवाज पर रुकी थी। आज फिर तुम अपने ही घर में चोरी पर उतर आई हो। निशाल ने जल्दी से केक की प्लेट अपने पीछे छुपाई थी और इसकी तरफ आंखें फैलाते हुए मुड़ी थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई? मैं जब भी किचन आऊंगी क्या चोरी की नीयत से आऊंगी या कुछ खाने ही आऊंगी? निशाल ने तीखे लहजे में कहा। तो किचन में और किस नीयत से आते हैं? वो टिश्यू इसके हाथ में थमाते हुए हंसी दबाकर बोला। निशाल ने टिश्यू को घूरा जिस पर वो पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए इसे इसी की शक्ल दिखा चुका था। इसके होंठ केक से भरे हुए थे। मर गई। वो टिश्यू से मुंह साफ कर चुकी थी। ये पीछे क्या छुपाया? नजम ने एक आईब्रो उठाई। ये वो अली से आपी को भूख लगी है, साइड पर हटे, मुझे इनके लिए कुछ खाने को ले जाना है। बहाना बनाते हुए फौरन हवा हुई। नजम हंसते हुए इसे जाता हुआ देख रहा था। बादल जोरदार गरज के साथ बारिश की पेशगोई कर चुके थे। ठंडी हवा चल पड़ी थी। कहाँ गए वो दोनों? ढूंढो वरना आज बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। गार्ड्स इन्हें ढूंढने के लिए अलहदा हो गए थे। वो साकित पड़े गार्ड तक पहुंचा था। इसके एक AKM गन उठाते हुए इसने इसे लोड किया था। ताबीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा जो पिस्टल पॉकेट में रखते हुए दूसरे AKM गन पर मैग लगा रहा था। वो दोनों गन उठाते हुए एक पत्थर उठाकर मुखालिफ सिमत में डाल चुका था। मैंने वहां आहट सुनी, कोई था वहां? एक गार्ड पत्थर की सिमत देखते हुए बोला। गार्ड्स आहट की जानिब मुतवज्जे हुए थे इसके इरादे जानकर। ताबीर ने डरते हुए दोनों आंखों पर हाथ रखे थे। फायरिंग की आवाज़ खामोश फिजा में तूफान की तरह गूंजी थी। वो दोनों गन से बड़ी महारत से फायरिंग कर रहा था, जबकि मुखालिफ सिमत से आती हुई फायरिंग पर डॉच हो रहा था। कवर फायर करते हुए वो जलती कारों को कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बेवकूफ़ियाँ क्या कर रहे हो? दूसरी सिमत से अटैक करो। कुछ गार्ड्स कॉल पर दूसरी जानिब बढ़े थे जिस तरफ ताबीर थी। नॉट अ चांस। वो तंज से कहते हुए एक घुटना टिकाते हुए इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो रुख बदलते हुए लेफ्ट साइड पर परी फायर कर रहा था। गार्ड्स वापस राइट साइड की तरफ दौड़े थे। हम बुरी तरह फंस चुके हैं, गार्ड ने कॉल पर घबरा कर बताया था। एक बंदा नहीं मर रहा तुमसे इडियट। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो शख्स आग बगोला हो गया था। ताबीर ने आध मुंह खोलकर इसे देखा जो सब गार्ड्स पर भारी पड़ रहा था। कि तुम वाकई सोचते हो 20 लोग इसे मार सकते हैं?
दो को वो पहले ही मार चुका है, वो सब मारे जाएंगे, तुम बेवकूफ़ हो, सब गार्ड्स मार देगा वो। गिलास में ड्रिंक डालते हुए एक अंधेरे में डूबा वो वजूद तंज से हंसा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पहला शख्स हैरान हुआ। मैं बहुत करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, वो 20 तो क्या ऐसे 100 लोग भी मार डालेगा। वो मौत से नहीं डरता, मैं जानता हूँ वो कौन है, मगर तुम वाकिफ नहीं हो। इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसकी कोई कमजोरी नहीं है। ड्रिंक पीते हुए शख्स उठा। तो अब क्या किया जाए? पहला शख्स सोच में पड़ गया था। इसकी कमजोरी, गार्ड्स के मुताबिक इसके साथ एक लड़की देखी गई है। फाइनली मरजान काजमी की जिंदगी में कोई आ ही गई। नजर रखो इस पर और ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे वो तुम तक पहुंच जाए। ये जान लो, अगर वो तुम तक पहुंच गया सब बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे टुकड़े कर देगा वो। ड्रिंक का खाली गिलास टेबल पर रखते हुए अंधेरे कमरे से जा चुका था, पहले शख्स को हैरत में डालकर। 20 लोगों को भी मार सकता है, आखिर कौन है ये मरजान काजमी? पहला शख्स गुस्से से टेबल पर से ड्रिंक नीचे गिराते हुए चिल्लाया, वो तो हमारी गाड़ी की तरफ जा रहा है। गार्ड ने खौफ से चीखते हुए सबको इसकी तरफ मुतवज्जे किया। तो क्या हुआ? दूसरा गार्ड लापरवाही से बोला था, गाड़ी में बॉस ने मशीन गन रखवाई थी। पहला गार्ड गड़बड़ा गया था। क्या? बाकी बचे खचे गार्ड हैरत से चूके थे। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। गन और रिलोड की आवाज़ पर वो सब खौफ से मुखालिफ सिमत में दौड़े थे। ताबीर हैरत से पत्थर के पीछे से निकली थी, वो गन पर सुपर सप्रेसर लगाते हुए गार्ड्स की तरफ फायरिंग कर रहा था। मारे के ही छोड़ेगा क्या? तभी ने चोर नजरों से इसे देखते हुए सोचा। कुछ गार्ड जख्मी होकर वहां गिरे थे, जब कुछ भाग निकले थे। बारिश शुरू हो गई थी। वो मशीन गन कार में रखते हुए ताबीर की जाने मुड़ा था। वो रोते हुए इसके सीने से लगी थी। बारिश ने शिद्दत पकड़ी थी। हम बच गए, ताबीर ने सर उठाते हुए इसकी आंखों में देख कर कहा। वो इसकी बेवकूफ़ी और मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराया था। ताबीर ने चौंक कर इसे देखा, वो हंसता भी था। चलो हमें देर हो रही, संजीदगी से कहता। वो कार की तरफ मुड़ा था। ताबीर को अपने पीछे आहट सुनाई दी। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी थी। एक जख्मी गार्ड जो नीचे गिरा था पिस्टल लोड करते हुए इसका रुख मरजान की तरफ कर चुका था। सर, ताबीर चीखते हुए इसकी सीमत भागी थी। गोली चलने की आवाज़ वीराने में गूंजी थी। वो दोनों जमीन पर गिरे थे। वो ताबीर को थामते हुए गिरा था। ताबीर ने खौफ से आंखें भींची थी। गार्ड ने उठते हुए दूसरी गोली मरजान के कंधे पर मारी थी। वो दर्द से कराते हुए दूसरी हाथ से पिस्टल से गार्ड पर फायर कर चुका था। गार्ड कराते हुए गिरा था। मरजान ने ताबीर को सहारे से उठाया। आह! ताबीर बाजू पकड़ते हुए दर्द से आंखें बंद करते हुए किरा गई थी। बारिश और हवा तेज हो रही थी। मौसम खराब हो चुका था। कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो? मरजान ने इसे सहारा देते हुए उठाया था। ताबीर ने अपने बाजू की तरफ देखा। इसकी कोहनी पर चोट आई थी और खून निकल रहा था। इसका मतलब दोनों गोलियां मरजान को लगी थी। ताबीर ने रोते हुए इसे देखा, जो इसे उठाते हुए अपना सीधा बाजू पकड़े उठा था। खून खून निकल रहा है सर। वो कमजोर दिल लड़की खून देखती ही फौरन रो गई थी। कुछ नहीं हुआ, चलो। इसकी कलाई थामते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। लेकिन आपको गोली लगी है, ताबीर ने कांपती आवाज में कहा। रोते हुए इसकी आवाज बैठ गई थी। आप ठीक नहीं है? मैं क्या करूं? इसका बाजू देखते हुए वो रोते हुए पूछ रही थी। वो इसे अपने दर्द पर बेकाबू रोता देखकर हैरान था। इतने जुल्म के बाद भी वो इसकी इतनी परवाह क्यों करती थी? ताबीर ने दुपट्टा गले से निकालते हुए इसके बाजू पर रखा। वो सपाट नजरों से इसे देख रहा था। हम क्या करेंगे अब? हमें अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे ले जाऊं? अल्लाह, मैं क्या करूंगी? वो मुसलसल रो रही थी और इसे जख्म देखकर टूट रही थी। वो ढह सा गया था। इसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बुरी तरह रो रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जाले उठी और आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। नदीम वो इसे देखकर चौंकी। क्या सर यहाँ आए? मैम, वो नजरें झुकाए खड़ा था। नहीं। क्या भैया वो तो नहीं आए? आधी रात को वो यहाँ क्या करने आएंगे? जाले ने हैरानगी से पूछा। मेरा मतलब घर से था। नदीम ने इसकी बेवकूफ़ी पर मातम किया। नहीं, घर भी नहीं आए। जाले ने मुंह बसोरा। ओके। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। सड़ियल। नदीम रुका था इसका दिया खिताब सुनकर। मेरा मतलब था एरियल। वो मुझे याद आया, मैंने कल बहुत कपड़े धोने हैं। वो दरवाज़ा बंद करते हुए ज़ोर से हंसी थी, जिस पर नदीम ने दरवाजे को कुरी से नवाजा था। सर, अगर घर नहीं है तो कहाँ है? कहीं कोई हादसा? वो सोचते हुए जल्दी से लाउंज में खड़ी कार में बैठा था। मुझे खुद जाना चाहिए था सर के साथ। वो खुद वो कोसता हुआ कार को भीगे रोड पर दौड़ा चुका था। वो अच्छे से जानता था वो इस वक्त भी ड्राइव कर सकता था, मगर वो इसे आजमाने के लिए इस इरादे को तर्क कर चुका था। सर, आप मुझसे बोले ना, खामोश मत रहे। वो इसके भीगे चेहरे को थपथपाते हुए भराई लहजे में बोली थी। वो धीरे से आंखें खोल चुका था। हम अस्पताल जाएंगे, मैं लेकर जाऊंगी। इसका बाजू धीरे से थामते हुए इसे उठाते हुए बोली। मगर वो भला वो तितली जैसी लड़की कैसे संभाल सकती थी इसे? वो संजीदगी से इसे अपनी खातिर रोता पीटा देखता रहा। बमुश्किल वो इसे खड़ा कर चुकी थी। मुझे रास्ता नहीं पता। वो घबराते हुए आसपास देख रही थी। दूर से आती रोशन शय देखकर वो और सहमी थी। नदीम ने मरजान की हालत देख कर फौरन
कार रोकी और बाहर आया। वो दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। सर ये सब कैसे हुआ? नदीम ने मरजान को सहारा देते हुए परेशानी से पूछा। वो ताबीर की तरफ संजीदगी से देखता हुआ कार में बैठा था, जबकि नदीम ने मजीद सवाल पूछने से गुरेज किया था। ताबीर बैक सीट पर बैठी थी। फार्म हाउस चलो नदीम। इसके हुक्म पर ताबीर और नदीम दोनों चूके थे। मगर आपको गोली, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। इसके रूखे लहजे पर ताबीर खामोश हुई थी। नदीम कार तेजी से दौड़ाते हुए फार्म हाउस तक लाया था। वो खुद कार का दरवाजा खोलते हुए नीचे उतरा था। गार्ड्स इसकी हालत में देखकर परेशान हुए थे। वो कोट उतार कर नीचे फेंकता हुआ ताबीर का दुपट्टा बाजू पर बांध चुका था। मुझे एक एक शख्स की डिटेल चाहिए कल सुबह, वो दो टोक लहजे में कहता हुआ फार्म हाउस के अंदर जा चुका था। आप अंदर ले जाएं। नदीम ताबीर को फरजाना के हवाले करते हुए फौरन मरजान के पीछे गया था। बेटा ख्याल से करो। फरजाना ने फर्स्ट एड बॉक्स ताबीर से लेते हुए कहा, जो मरजान का सोचकर गलती से एंटीसेप्टिक गिरा बैठी थी। आप प्लीज़ जाकर पता करें ना सर, अब कैसे हैं? ताबीर ने फरजाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। दरवाज़ा खुलने पर वो दोनों दरवाजे पर आए नदीम की तरफ मुतवज्जे हुई थी। सर ने बुलाया है आपको। ताबीर जल्दी से उठी थी। बेटा ये तो लगवा लो। फरजाना को नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन नदीम के साथ गई थी। क्या डॉक्टर आ गए? ताबीर के सवाल पर नदीम ने होठों को सख्ती से भींचा। नहीं सर ने मना किया है। वो दरवाजे पर रुकते हुए बोला। आप नहीं आ रहे? ताबीर ने इसे परेशानी से दरियाफ्त किया। नहीं, वो कहकर वापस लौट गया था। ताबीर ने धड़कते दिल को संभाला और दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर इसकी रूह को खता करने के लिए काफ़ी था। वो एक्सट्रैक्टर से अपने कंधे पर मौजूद गहरे घाव से गोली निकाल चुका था। ताबीर के कदम डगमगाए थे। वो बेचारी वहीं जम गई थी। वो बैंडेज करने के बाद शर्ट उठाकर पहनते हुए इसे सोफे पर बैठने का इशारा कर चुका था। कांपते वजूद के साथ वो इसके सामने सोफे पर बैठी थी। वो सपाट नज़रों से इसका तायराना जायजा ले रहा था। ताबीर की टांगें अब भी कांप रही थी। वो यकदम उठा, जिससे पर ताबीर ने खौफ से झटका खाया, मगर खुद की बेवकूफ़ी पर वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका चुकी थी। तुम जा सकती हो। फर्स्ट एड बॉक्स एड किट इसकी तरफ बढ़ाते हुए सर्द लहजे में गोयो। आप अब कैसे हैं? वो अटक अटक कर कहती हुई फ़ौरन नज़रें झुका गई। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मगरूर उल्टा सवाल कर गया था। आप अगर डॉक्टर को बुला लेते तो बेहतर होता। हुआ घबराते हुए बोली थी। अच्छा, और अब मैं तुमसे ऑर्डर्स लूँगा? वो इसके करीब आकर रुका था। नहीं सॉरी, वो होंठ भींचते हुए गड़बड़ा गई थी। कल तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो और वहाँ तुम फरजाना की बेटी बनकर रहोगी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला, जिस पर ताबीर को 440 वॉलेट का झटका लगा था। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई और किसी से इस बारे में कुछ कहा, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर इनसे गोटियां खेलूंगा। वो धमकाते हुए इसकी आंखों में देखकर बोला। ताबीर की गर्दन पर गुठली सी नमूदार हुई और फिर गायब होगी। घबराहट से इसे पसीने छूट रहे थे। जज जी, वो सटपटाते हुए लहजे में बोली, और किसी से भी बेवजह गुफ्तगू से परहेज करोगी वरना जी। वो जल्दी से बोली इसकी धमकी से बचने के लिए। वो फर्स्ट एड किट इसके हाथ में थमाते हुए इसे जाने का इशारा कर चुका था। वो हम ताबीर इसकी ग्रे आंखों में देखते हुए घबरा कर चुप हुई थी। नदीम दरवाजे पर नाक करते हुए अंदर आया था। इसके हाथ में काफ़ी का कप था। मरजान ने स्पार नज़रों से इसे किट वापस रखते हुए देखा। मरजान इसे काफ़ी का कप ले चुका था। ताबीर फर्स्ट एड किट टेबल पर रखते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी। इसका दिल धक धक कर रहा था। अब तक हम सिर्फ मरजान काज़मी पर नज़र रख रहे थे, मगर अब हम इसकी पूरी फैमिली पर नज़र रखेंगे, और ख़ास तौर पर वो लड़की जो इसके साथ थी। कॉन्फ्रेंस रूम अंधेरे में डूबा हुआ था हमेशा की तरह। आज फिर स्क्रीन पर मध्यम रोशनी में वीडियो चल रही थी। ये मुनव्वर काज़मी है, सुहेल रज़ा काज़मी से छोटा भाई, मरजान का बड़ा चाचा। अपनी बीवी को छोड़कर आसरे के नाम पर सुहेल की बीवी से निकाह करके बैठा है। मगर कहानी क्या है, वो राज है। सुहेल ने दूसरी शादी की थी। वहां से दो औलादें हुई, एक वो मरजान काज़मी और दूसरी इससे छोटी बहन जाले काज़मी। पहली शादी में सुहेल के 3 बच्चे हैं। अलीज़े सबसे बड़ी बेटी की, फिर निशाल और फिर शान। जबकि मुनव्वर के सिर्फ 2 बच्चे हैं, जुनैरा और नजम काज़मी। सब खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। सबसे बड़ा भाई और इसकी फैमिली फायर एक्सीडेंट में जलकर मर गए, मगर ये लड़का और इसकी बहन बच गए। मुनव्वर ने इन्हें क्यों घर रखा है कोई नहीं जानता। शायद भाई की औलाद को तना नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर मकसद कोई और, हम नहीं जानते। सबसे छोटा भाई आका है। इसके 3 बच्चे हैं, दाइम, हरब और मारिया। फिलहाल लंदन में मुकीम है। और ये लड़की जो आज रात देखी गई, इसके बारे में सब पता लगाना है अगली सुबह। नदीम ने बैग कार में रखते हुए दरवाज़ा खोला। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें घर क्यों ले जा रहे हैं? ताबीर ने फरजाना के सामने दिल की भड़ास निकाली। बेटा कोई बेहतरी होगी। कल जो कुछ हुआ इसके बाद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। फरजाना ने इसे समझाया। हम कैसे एडजस्ट करेंगे? आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? फरजाना का हाथ थामते वो घबराई। हाँ बेटा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं होगा। दोनों कार में बैठी थी। वो टेरेस पर खड़ा संजीदगी से नहीं जाता देख रहा था। ताबीर ने सूरज से इसकी जानिब देखा था। वो इसे संजीदगी से देख रहा था। नदीम ने कार स्टार्ट कर थी।
کی تھی۔ تعبیر مسلسل اسے نظروں سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ نظروں سے کہیں دور گم ہو گیا تھا۔ السلام علیکم انکل، وہ فون کان پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کہاں ہو؟ اور کل رات آپ واپس نہیں آئے، سب خیریت تھی نا؟ منور صاحب نے دریافت کرنا چاہا۔ سب خیریت ہے، آج بزنس میٹنگز کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، سوچا آپ کو بتا دوں۔ سرد لہجہ تھا۔ بیٹا فی الحال کینسل کر دو، آغا انکل آ رہے ہیں، علیزہ اور دائم کی انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سوری میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے وہ فون پاکٹ میں رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر پڑا سرخ دوپٹہ دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ آہستگی سے دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اس نے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ول فائنڈ یو زارا، دھیمی لہجے میں کہتے ہوئے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے اس میں دوپٹہ رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ گارڈ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے گلاسز لگاتے ہوئے کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ندیم نے کار کاظمی مینشن کے سامنے روکی تھی۔ فرزانہ بیگ نکالتے ہوئے کار سے اتری۔ تعبیر نے گھبراتے ہوئے پورے محل نما گھر کا جائزہ لیا۔ بیٹا جی فرزانہ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اب علیزہ کو چھیڑنا بند کر دینا چاہیے، بیچاری لال ہو رہی ہیں۔ زونی نے ماریا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے تالی بجائی، جبکہ علیزہ نے شرم سے منہ پھیرا۔ نشال مٹھائی کھانے میں مصروف تھی، جبکہ زالے آفرین بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اب ماریا نے فرزانہ کے ساتھ اندر آتی طبیعت دیکھ کر منہ بسورا۔ اور یہ میڈ کی بیٹی ہے، کام کے لیے ہی آئی ہوگی۔ زونی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پیاری نہیں ہے نہیں؟ علیزہ نے اس کے معصوم نقوش پڑھتے ہوئے کہا، جبکہ زونی اور ماریا ایک دوسرے پر گری تھی ہنستے ہوئے۔ فضول ہے تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی۔ علیزہ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ فرزانہ تم آ گئی؟ کشمالہ بیگم نے فرزانہ کے ساتھ کھڑی تعبیر کا طائرانہ جائزہ لیا۔ یہ میری بیٹی ہے، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ او تو اچھی بات ہے، گھر میں بہت زیادہ کام ہے، ہاتھ بٹا دے گی تمہارا۔ تعبیر نے فرزانہ بیگم کو دیکھا جو ہمدردی کی نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی۔ مطلب یہاں بھی اس بیچاری کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتا تھا وہ ظالم۔ کشمالہ بیگم کہتے ہوئے اسسٹنٹ کے ساتھ ڈیکوریشن ڈسکس کرنے لگی، کیونکہ آج علیزہ اور دائم کی انگیجمنٹ تھی۔ سرونٹ کوارٹر اس طرف ہیں بچی، زونی نے تعبیر کا مذاق بناتے ہوئے اشارہ کر کے کہا۔ فرزانہ تعبیر کو ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ تم جل کیوں رہی ہو اسے؟ ماریا نے زونی کو کندھا مارتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں میں اس میڈ کی بیٹی سے جلنے لگی، میرا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے، زونی نے فخر سے کہا۔ اوف، ماریا اس کی ادا پر ہنسی تھی۔ چھیڑ کر تنگ کر دیا مجھے، علیزہ اس سے پہلے چیختی۔ دائم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی دیوار سے لگایا۔ بدتمیز، یوں فلرٹ کر رہے ہو؟ کس نے دیکھ لیا تو؟ علیزہ نے اس کے ہاتھ منہ سے ہٹاتے ہوئے تنگ کر کہا۔ لو بھائی، اپنے ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرو گی؟ ارے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے؟ دائم نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ تم جیسے فلرٹ فوجی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے۔ پہلے تم میری بہن نشال پر لائن مار رہے تھے، جب پتہ چلا میں علیزہ ہوں تو میرے پیچھے لگ گئے۔ علیزہ نے تیوری چڑھائی۔ ارے تو علیزہ سمجھ کر اسے فلرٹ کیا، دیکھو میری نیت کتنی صاف ہے، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ہٹو، جانے دو مجھے، علیزہ نے احتجاج کیا۔ ارے بابا دیکھ تو لینے دو، لندن سے یہاں تک آیا ہوں، جی بھر کر دیکھ تو لوں۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ علیزہ لال ہوئی تھی شرم سے۔ ویسے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری علیزہ نشال اتنی موٹی تو نہیں تھی، یا پھر شاید کھا کر ہو گئی ہو۔ اسے برابر چھیڑ رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ ارے امی آپ! دائم جلدی سے پیچھے ہٹا تھا اور علیزہ موقع پا کر فوراً ہوا ہوئی تھی۔ جب تک دائم کی اس کی چالاکی سمجھا تھا وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اس کی شرارت پر۔ وہ جو فلائٹ لینے کے لیے ابھی پہنچا تھا، موبائل کی بیل بجنے پر سائیڈ پر آیا اور اسکرین پر زونی کا نام دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا چاہیے اب؟ وہ اکتائی لہجے میں بولا تھا، جبکہ زونی کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ میں آپ کو فون بھی نہیں کر سکتی، اتنا حق بھی نہیں مجھے، زونی نے خفا لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے آس پاس دیکھتے ہوئے گویا ہوا، لیکن میرا حق ہے، وہ صرف میرا حق ہے۔ زونی نے محبت سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ غصہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دیکھیں مرجان، اب آپ مجھے دھتکار نہیں سکتے، ہماری انگیجمنٹ ہونے والی ہے، آج ڈیڈا نے تم سے کچھ نہیں کہا؟ وہ غصے سے مٹھی بھینتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ زونی نے حیرت سے فون کو دیکھا، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ سر فلائٹ ٹیک آف کے لیے ریڈی ہیں، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، گارڈ نے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ وہ سنجیدگی سے بیگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ گارڈ رکا تھا۔ کینسل کر دو، وہ دو ٹوک لیجیے میں کہتے ہوئے تیزی سے کار کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈ نے فوراً اس کے حکم پر عمل کیا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کار کو فل سپیڈ میں سڑک پر دوڑا چکا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑی ٹیکسی کا ویٹ کر رہی تھی، آج اس کی بھی فلائٹ تھی۔ گارڈ وٹ دا ہیل، اس فضول گاڑی کو ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ کار کے ہوڈ پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے تنگ کر بولی۔ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر اس نے لفٹ کے لیے ہاتھ ہلایا تھا، جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں، یہ کار میں نہیں جانے دوں گی، میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے کار کے سامنے آئی تھی۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی دیکھ کر اس نے فوراً بریکس لگائے تھے۔ کار اس سے 1 انچ فاصلے پر رکی تھی۔ وہ غصے سے سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے کار سے اترا تھا، جبکہ وہ اس کار سے اترتا دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔
अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी लड़की देखकर इसने फौरन ब्रेक्स लगाए थे। कार इससे 1 इंच फासले पर रुकी थी। वो गुस्से से सीट बेल्ट हटाते हुए कार से उतरा था, जबकि वो इस कार से उतरता देखकर अपनी जगह पर जम सी गई थी। नजर नहीं आता आपको? अगर ब्रेक्स ना लगाए होते तो मर जाती। वो इसका मुकाबले आते हुए गुस्से से बोला, जबकि वो आज मुंह खोले इसे कन अखियों से तकने में मसरूफ थी। सुनाई नहीं देता आपको? इसका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। आप इसे बोलने के लिए लफ्ज कम पड़ रहे थे। वो हैरत और खुशी के मिली-जुले जज्बातों से इसे देख रही थी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। 1 मिनट मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? वो जल्दी में अपनी फ्लाइट की टिकट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा चुकी थी, जबकि वो गुस्से से आतिफ शाह की तरह आग बरसाने को तैयार था। इसकी बेवकूफ़ हरकत पर हैरान हुआ था। आप मेरे फेवरेट पर्सन है इस पूरी दुनिया में, नंबर 1। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी और आज आप मुझसे मिल गए। प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे दें। वो बचपन से कहती हुई इसे कोई दिमागी मरीज़ा लगी तो क्या इसके लिए बीच सड़क में कूद जाओगी? वो हैरानी से इसे देख रहा था, जो मुसलसल बगैर पलकें झपकाए से तक रही थी। हाँ, अगर मुझे पता होता तो ये आपकी ही कसर होगी। मैं आपकी कार से टकरा जाती। वो खुशी से चहक पड़ी थी, जबकि वो ठंडी आह भरते हुए गुस्से से जब्त कर गया था। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। वो हैरान था, वो गुस्से से सुना चुका था और वह बेवकूफ़ इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। बाय द वे, आई एम तबस्सुम, यू कैन कॉल मी ज़हरा। इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराई, जबकि इसका नाम सुनकर इसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। इसके हाथ की तरफ देखते हुए इसकी नज़र इसके ब्रेसलेट पर पड़ी थी, जिस पर M0 के लेटर्स लिखे थे। वो लंबी सांस खारिज करते हुए कार के हुड से आसरे लगा था। इसका दिल नहीं मान रहा था, वो इससे मिल गई थी। हमारा पांडा क्या कर रहा है? नजम की आवाज़ पर निशाल ने मुंह गोलगप्पा बनाया था। देखो, लड़ाई माफ़ करते हैं और मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अगर दोबारा कभी जानबूझकर मुझ पर गिर गई, मेरा तो खुदा ही हाफिज हो जाएगी। इसलिए सुलह कर लेते हैं। नजम ने इसे बराबर ताना मारा था और वो जो अपने और अलीजा के लिए गजरे बना रही थी, मुंह फुलाते हुए बारीक तार इसके हाथ में चबूत चुकी थी। वो चीखते हुए हाथ पीछे खींच चुका था। अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी एक एक पसली तोड़ दूंगी। और खबरदार जो मुझे पांडा कहा तो वो तेवरी चढ़ाकर बोली। अच्छा, दोस्ती नहीं हो सकती? वो उंगली मुंह में डाले हुए दर्द सहकर बोला था। नहीं, कभी भी नहीं। निशाल ने जबान निकालते हुए मुंह चिढ़ाया था। अब भी नहीं? वो लार्ज साइड पिज़्ज़ा इसके मुंह सामने रखते हुए बोला, जिस पर निशाल के पेट में चूहों ने इलाने जंग किया था। हाँ, आप सोच सकती हो। वो पिज़्ज़ा उठाते हुए मुस्कुराकर बोली। नजम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जिससे वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लेकर जोर से दबा गई थी। ये लड़की मेरा कीमा कर देगी एक दिन, दिल में कहता हुआ सुर्ख होते हाथ को पॉकेट में डालता हुआ वो वहां से हवा हुआ था। कहाँ थी आप? धीरे से कहते हुए इसे मोहब्बत की नजरों से देख रहा था। पहचान लिया? वो मुस्कुराई थी इसकी मोहब्बत भरे लहजे पर। 14 साल हो गए, जानती हो, मैं याद भी हूँ। वो संजीदगी से बोला था। बिल्कुल, साथ खेला करते थे, एक साथ रहते थे हमेशा। रिमेंबर? इसकी मुस्कान और गहरी हुई थी। वो संजीदगी से चलते हुए इसके रूबरू आया था। क्या हुआ? आप भी कोई शक है? कुछ भी पूछ सकते हो मरजान, मैं तुम्हारी ज़ारा ही हूँ। वो सीने पर हाथ बांधते हुए मुस्कुराई। वो आंखें सुकून से बांधते करते हुए इसे सीने से लगा चुका था। सिली बॉय, वो हंसती हुई से गले लगा चुकी थी। मैं जानता हूँ आप मिल जाएंगी मुझे एक दिन। अब एयरपोर्ट छोड़ दोगे? वो तंजन पैर पीछे हुई। नेवर। वो लब पीते हुए धीमे से बोला। मेरी फ्लाइट है। मेरी भी थी। वो संजीदगी से बोला। थी? वो हैरान हुई। कैंसल हो गई। घर फंक्शन है, चल रही हूँ। इसे देखते हुए पूछ किया था। किस हक से? वो इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। इसके सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, बताओ भी, किस हक से? और मुझे ही क्यों ढूंढ रहे थे? वो आईब्रो उचकाते हुए शरारत से पूछ रही थी। क्या हर बात बतानी जरूरी है? वो मुस्कुराया था। हाँ, जब तक बता नहीं देते मैं तो यहाँ से हाल भी नहीं रही और यहाँ खेमा लगाकर बैठ जाऊंगी। अगर रात हो गई तो वो गाड़ी के होड पर बैठ गई थी, जिस पर वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया था। मरजान, एक बात कहूँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे। वो धीरे से इसे मुखातिब कर गई थी, जिस पर वो संजीदगी से इसे देख गया था। तुम जानते हो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। जब किडनैपर्स मुझे ले गए तो मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया, मुझे भूखा रखा गया। 14 साल तक मुझे मुसलसल टॉर्चर किया गया। लेकिन फिर शहवार को जब पता चला कि मामू जान ने अपनी प्रॉपर्टी के 40 शेयर्स मेरे नाम किए हैं, तो इसने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया। 40% शेयर्स मेरे नाम की, जिसने मुझे जिंदा रखने का फैसला किया। मरजान संजीदगी से इसकी बात सुन रहा था। मुझे इसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन पाकिस्तान से दूर, ताकि वो मामू जान की प्रॉपर्टी हथिया सके। मैंने बहुत कोशिश की तुम तक पहुंचने की, लेकिन मैं मजबूर थी। वो रो पड़ी थी। इसकी बेटी ने मुझे हर हिसाब से नीचे दिखाया या मुझे यतीम होने के ताने दिए गए। मुझे बहुत अजियत दी गई, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए जिंदा थी। जब शहवार घर आया तो वो बहुत खुश था। वो कह रहा था वो तुम्हारा घर जला कर आया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मरजान। मैं मर जाने के करीब थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला तुम और जाले बिल्कुल सही सलामत हो। मुनव्वर अंकल तुम्हें अपने घर लाए। मेरे दिल जानती हूँ, जब डैड किडनैपर्स के पास कैश लेकर गए
तो इन्होंने कहा, तुम गलती से खाई में गिर गई हो। बहुत ढूंढा, सबने उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैं जानता था तुम हो। मैं महसूस करता था तुम वाकई हो। वो मुस्कुराते हुए इसे गले लगा चुकी थी। मैंने बहुत ढूंढा और अब जाकर मुझे मिली हो। इसके माथे पर लब रखते हुए वो मोहब्बत से बोल रहा था, जबकि वो दिल में नए जज्बात उभरते हुए महसूस कर रही थी। तुम्हारी आंखें मरजान, आई जस्ट लव दैट। इसकी आंखों पर होंठ रखते हुए वो मुस्कुराई। तुम क्यों सुकून से बैठी हो? उठो और अपनी माँ के साथ सफाई में मदद करो। मारिया ने ताबीर को ताना दिया, जो थक हार कर अभी ही बैठी थी। ताबीर का सांस फूल रहा था। अभी तो वो किचन से के काम से फारिग हुई थी। वो लाभ भींची हुई उठी थी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। तुम बना लोगी ना? जोनी ने सोफे पर बैठते हुए रौब से कहा। जी। वो बोझल कदमों के साथ दोबारा किचन में गई थी। ये चीनी कहाँ होगी? अब वो ऊपर की शेल्फ देखते हुए बोली, उफ, यहाँ तक हाथ ही नहीं जाएगा, क्या करूं? एड़ियां उठाते हुए बामुश्किल इसकी उंगलियां शेल्फ तक से लगी थी। इससे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी थी। और रिलैक्स डोल, मैं सिर्फ डब्बा उठाने में मदद करना चाहता था। शान ने शेल्फ से डब्बा निकालकर ताबीर की तरफ बढ़ाया। ताबीर ने घबराते हुए इसे देखा, जो इसे सर से पांव तक घूर रहा था। जल्दी से डब्बा लेकर वो इससे पीछे हटी थी। वो उंगली से पेशानी मसलता हुआ इसे घूरता हुआ किचन से बाहर निकल गया था। चाय बनाकर वो जोनी को दे चुकी थी। फजूल, और कितनी गर्म है ये। एक घूंट भरते हुए वो गर्म चाय का कप इसके पैरों में गिरा चुकी थी। गर्म चाय ताबीर के पाँव जला चुकी थी। तुम्हें कोई काम आता भी है? ये फजूल की रोटियां तोड़ने आई हो? इसमें थोड़ी सी भी चीनी नहीं है। जोनी ने ड्रामा करते हुए इसे खरी खरी सुनाई। वो सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी। माफ करना बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। फरजाना ने आकर इसे बचाया। वो रोते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी थी। अब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जोनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। फरजाना ने नीचे गिरी चाय और टूटे कप के टुकड़े समेटे। मारिया और जोनी हंसते हुए वहां से जा चुकी थी। आह, इसकी कोनी दीवार पर से रगड़ खा गई थी। जख्म अभी सूखा नहीं था। दोबारा खून बहने लगा और दर्द से बाजू पकड़ते हुए पैरों की तरफ देख चुकी थी, जिन पर छाले पड़ गए थे। किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं हम, अल्लाह पाक, कुछ सकते हुए घुटनों पे सर दे गई थी। गार्ड ने इसकी वाइट मर्सिडीज देखकर फौरन गेट खोला था। कार पार करते हुए गार्ड के गेट खोलने पर शान से नीचे उतरा था। जोनी खिड़की से इस मगरूर हसीन शहजादे को देखते हुए मुस्कुराई। वो मुस्कुराते हुए फ्रंट सीट से इसे देखते हुए कार से बाहर लाया था। वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम चुकी थी। जोनी पहले तो हैरान हुई थी, फिर गुस्से से कमरे से निकलते हुए लाउंज तक आई थी। घर के सभी अफराद इसके आने की खबर से वाकिफ थे, सिवाय ताबीर के। इसके मुताबिक वो इस्लामाबाद जा चुका था। हमारे गेस्ट हैं, शादी तक यही रहेंगी। गेस्ट रूम इस तरफ है। वो इसका बैग लेते हुए इसकी कलाई थाम कर एक तरफ मुड़ा था। जोनी ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा, जबकि बाकी सब मामूली बात समझकर काम में जुट गए थे, क्योंकि इससे बिजनेस पार्टनर वगैरह अक्सर आते रहते थे। फरजाना ताबीर को देखने के लिए गई थी। वो नीचे बैठी घुटनों में सर दिए सो गई थी। कितनी मुश्किल जिंदगी है तुम्हारी मेरी बच्ची, न जाने कब ये अजियतें कम हो गई। इसके सर पर हाथ फेरते हुए फरजाना ने इसके पैरों को देखा, जिन पर साफ छाले नुमाया थे। नहीं, आप प्लीज रहने दें, मैं कर लूंगी। इससे पहले वो खुद इन पर मरहम लगाती, ताबीर ने इसका हाथ पकड़ा। बेटा, इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं, खैर है, अगर आपको मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज दीजिएगा। वो दोबारा घुटनों में सर दिए खामोश हो गई थी। फरजाना इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए उठकर चली गई थी। मरजान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो सोफे पर बैठते हुए इसको देख कर बोली थी। कुछ नहीं होगा, रेस्ट करो, रात को एंगेजमेंट सेरेमनी है तुम्हारी। वो शरारत से कहते हुए इसे भड़का चुकी थी। तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। वो एक आईब्रो उठाते हुए इसे घूर गया था। ठीक है, मत करना। वो हंसते हुए मुंह पर हाथ दे गई थी। वो कुछ सोचते हुए बाहर चला गया। इसका रुख मुनव्वर साहब के कमरे की तरफ को था। करना क्या चाहते हो तुम इस लड़की को घर में लाकर? जोनी ने इसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से इसका कोट पकड़ा था। अपनी हद में रहकर बात करें। वो इसका हाथ कोट से निकालते हुए इसे 2 कदम पीछे हटा था। हद तुम क्रॉस कर रहे हो। कौन है वो लड़की? कहाँ से उठा कर लाए हो? तुम्हें पता भी है आज मेरे साथ एंगेजमेंट? जस्ट शट अप, एक लफ्ज़ और नहीं। किसने कह दिया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? वो कड़कदार लहजे में कहते हुआ जोनी को कांपने पर मजबूर कर गया था। नॉनसेंस। वो गुस्से से आतिश फिशाब बना मुनव्वर साहब के कमरे में जा चुका था। अरे बेटा आओ ना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कशमाला बता रही तुम्हारे साथ कोई मेहमान है? कौन है बेटा वो? मुनव्वर साहब ने लीजे में शहरीनी घोल कर इसको पेश की थी। बिजनेस पार्टनर है। वो संजीदगी से झूठ बोल चुका था। बिना बेटा एंगेजमेंट के लिए तो तैयार होना। कशमाला बेगम ने मुस्कुराती हुई पाशी की। फरजान ने स्पार नजरों से अपनी सुतीली माँ को देखा, जो साहब की जरूरत थी। तो बेटा अब आखिर मिच्योर हो रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता सारे बिजनेस की जिम्मेदारियां तुमने देखनी है, और कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। ऐसा करोगे तो कोई कैसे चलेगा? कहने को तो कशमाला बेगम ने धीरे से इसके कान के करीब कहा, मगर मुनव्वर साहब ने बराबर सुना था। कशमाला की बात पर मुनव्वर साहब ने नजरों से सराहा था। आप सोचती हैं प्रॉपर्टी का सुनकर मैं ये मंगनी कर लूंगा? ये मुजाका खैज है। वो पॉकेट में हाथ डालते हुए दगीरे से कहकर मुस्कुराया दिलेरी से कहकर मुस्कुराए। मेरे ख्याल से हाँ। प्रॉपर्टी का पता नहीं, मगर अपने डैड से जुड़ी बातें जरूर जानना चाहोगे नहीं? और प्रॉपर्टी का क्या है? आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन फिलहाल तो मुनव्वर के पास है। कशमाला बेगम ने चालाकी से कहा।
ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی مائنڈ گیمز زیادہ دیر تک کام نہیں کریں گی. ڈیئر ریسٹ موم، وہ سنجیدگی سے کہتا وہ کمرے سے باہر آیا تھا. منور وہ پراپرٹی کے لیے نہیں لیکن ان باتوں کے لیے ضرور ایسا کرے گا، فکر مت کرو. کشمالہ بیگم مسکرائی تھی اپنی کامیابی پر اور منور صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے. بیٹی کی ضد کی وجہ سے انہیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا. انگیجمنٹ کی تیاریاں زور و شور پر تھی. پورے گھر کو بہترین انداز میں سجایا گیا تھا. پورا گھر روشنی سے نہایا ہوا تھا اور پنک پھولوں کی ڈیکوریشن نے اس محل نما حویلی کو چار چاند لگا دیے تھے. حویلی کو سیکیورٹی دی گئی تھی. گھر میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے. وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نہ جانے کب سے شاور کے نیچے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا. آخر کیا جانتی ہیں وہ ڈیڈ کے بارے میں جو بزنس ریلیٹڈ بھی ہے؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا. وہ ہوا میں تیر کبھی نہیں چلائیں گی. جہاں تک میں جانتا ہوں ضرور کچھ ہیں جو وہ چھپا رہی ہیں. وہ ماتھے پر آتے گیلے بال ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا تھا. مجھے اس ڈرامے کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں انہیں اس کا حساب الگ سے دینا ہوگا. وہ شاور بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا بیٹے یہ کپڑے پہن لو اور نیچے چلو مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 5 منٹ دے میں آتی ہوں. تعبیر بچے وہ فرزانہ کی طرف دیکھ گئی تھی. بیٹا آج بڑے صاحب کی بھی انگیجمنٹ ہے. تعبیر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکیلا تھا. وہ بے چین ہوئی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑنے کو تھا. فرزانہ کہتے ہوئے کمرے سے شان سے تالی بجا کر خیال کہنا تمہاری بند کر چکا. بالوں کو سیٹ کیے، منہ پر شدید معصومیت کا نقاب لگائے، کافی ہینڈسم لگ رہا تھا. دیکھو آپ فوراً ادھر سے جاؤ. اگر کسی نے دیکھ لیا. وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. جسٹ امیزنگ. وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرائے تھے جبکہ علیزہ کے گالوں پر سرخ لالی سے ابھری تھی. وہ فوراً نظریں جھکا چکی تھی. میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ لیا. اور یہ جو آپ بار بار مجھے چلے جانے کو کہتی ہیں اس کا حساب ٹھیک اسی ہفتے میں آپ سے گن چن کر لوں گا. تب نہ آپ مجھے بھگا پائیں گے اور نہ آپ کو بھاگنے دوں گا. وہ اس فاصلے پر رکا تھا. علیزہ نے شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا تھا. وہ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا کرتے میں. میں واپس جا رہا ہوں لیکن آپ کی بات مان کر نہیں. مجھے احساس ہے کہ اگر یہاں میں کسی نے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا. وہ مسکراتے ہوئے اسے آخری نظر دیکھ کر کمرے سے چلا گیا تھا جبکہ علیزہ اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو اعتدال میں لانے کے لیے لمبی سانسیں لے گئی تھی. سلیو لیس ریڈ میکسی فراک میں بالوں کو کرل کیے ڈارک میک اپ میں وہ خود برائڈ لگ رہی تھی. ڈارک ریڈ لپسٹک ایک بار پھر ہونٹوں پر رگڑتی ہوئی وہ مرر سے پیچھے ہوئی تھی. جب روم کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی جگہ پر جم گئی تھی اسے دیکھ کر. بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ پہلے ہی قیامت ڈھانے پر تھا. گولڈن بالوں کو جیل سے نفاست سیٹ کیا گیا تھا مگر ہیزل گرے آنکھوں میں آج کچھ اداسی تھی. اس کی سنجیدگی نے اس کی کشش میں اضافہ کیا ہوا تھا. وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی. کسے مارنا چاہتے ہو مرجان کاظمی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کوٹ کو کھینچ گئی تھی. اس کی اس حرکت نے صرف اس کی سنجیدگی میں اضافہ کیا تھا. تو تم راضی ہو گئے انگیجمنٹ کے لیے؟ میں تمہارے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی. وہ اس کی آنکھوں میں مسلسل بڑھتی سنجیدگی دیکھ رہی تھی. ایسا نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گویا ہوا. تو پھر ثابت کرو تم اب بھی مجھے چاہتے ہو. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریب ہوئی تھی. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب آنے پر سپاٹ لہجے میں بولا تھا. کم آن اتنے معصوم کیوں بن رہے ہو؟ پوری دنیا کی لڑکیاں تم پر مرتی ہوں گی، کبھی تم نے یہ سب نہیں کیا. اس کے ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے وہ شوخی سے بولی. تو تم یہ سوچتی ہو؟ اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ زنیرہ نامی لڑکی آخرکار تمہارے دل میں جگہ بنا ہی گئی اور اگر نہیں تو ثابت کرو کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے. اس کی فرمائش پر وہ اسے دونوں کندھوں سے نرمی سے پکڑتے ہوئے قریب کر چکا تھا. وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی اس کے قریب تر ہوئی تھی. وہ اسی سختی سے خود سے دور کر چکا تھا جس پر اس لڑکی کے دل پر چوٹ لگی تھی. کیوں نہیں پیار نہیں کرتے مجھ سے؟ وہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو سختی سے صاف کر گئی تھی. وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکا تھا جس پر وہ غصے سے موبائل دیوار میں مار چکی تھی.
کہاں جا رہے ہو؟ رکو تم۔ ایک گارڈ نے 2 ویٹرز کو روکا جو سر جھکائے مینشن میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر ہمیں آرڈر دیا گیا تھا کھانا سرو کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک فوراً بولا تو کانٹریکٹ پیپر تو تمہارے پاس ہوگا، وہ دکھاؤ، اس کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے۔ گارڈ نے سختی سے کہا وہ ہمارے مینیجر کے پاس ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ چالاکی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے تم یہی رکو۔ گارڈ جو تفتیش کے لیے پیچھے گیا تھا وہ فوراً موقع دیکھ کر دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ اپنا کام یاد رکھنا اور کوئی بھی گڑبڑ ہو خود کو اڑا دینا، مگر ایک لفظ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسرا ویٹر سر ہاں میں ہلاتے ہوئے لوگوں میں غائب ہوا تھا۔ تعبیر صبح سے کام میں مصروف تھی، ابھی وہ مہمانوں کو ڈرنک سرو کرنے کے بعد تھکی ہاری کرسی پر بیٹھی تھی۔ تم تھک گئی لگتا ہے، زالے نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا تھا، جس پر وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، گھبراؤ مت، میں کوئی نیا کام نہیں دوں گی تمہیں، زالے نے مسکرا کر کہا، جس پر تعبیر نے سکھ کا سانس لیا۔ تو تم فرزانہ بی کی بیٹی ہو؟ زالے نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تعبیر نے گھبراہٹ سے ماض ہاں میں سر ہلایا تھا، مگر سامنے سے سیڑھیاں اترتے دشمن جان کو دیکھ کر اس کی دھڑکن بڑھی تھی۔ زالے نے مسکرا کر فخر سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ سبھی مہمانوں نے تالیاں بجاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ تعبیر نے زالے کے دھیرے سے کھنکارنے پر اس پر جمی نظریں گھمائی تھی۔ تو تمہیں میرے بھیا کیسے لگے؟ تعبیر بغیر پلکے چھپ گئے زالے کو کچھ دیر گھورا تھا۔ ہاں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، زالے نے مسکرا کر کہا، وہ مجھے پتہ نہیں، تعبیر نے انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بکھلا کر کہا۔ زالے مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی آفرین بیگم کی طرف جو ابھی ابھی نیچے آئی تھی۔ تعبیر نے خفا نظروں سے اس ظالم کو دیکھا جس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا جو زونی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کین آئی ہیو یور اٹینشن پلیز؟ وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے مرجان کے ساتھ اسٹیج پر آئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ اسٹیج پر آیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں آج مرجان اور میری انگیجمنٹ ہے، کیوں نہ اس سیرمنی کو تھوڑا خاص بنایا جائے؟ پلیز میوزک۔ سب نے تالیاں بجائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ واقعی شادی کرے گا؟ کشمالہ بیگم نے منور صاحب کے سوال پر ان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ نہیں جانتے اس وقت اس کے لیے اس کی فیملی سے جڑی یادوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ بیچارہ بچہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اپنے باپ سے جڑی ایک ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوگا۔ کشمالہ بیگم نے اس کی جانب دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، جو مجبوراً زونی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا وہ بار بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی، جبکہ وہ بس اکتایا وہ مجبوراً یہ سب کر رہا تھا، لیکن وہ زخمی شیر ہے، کسی بھی وقت جھپٹ سکتا ہے، اور جس پراپرٹی کی تم بات کر رہی ہو اتنی آسانی سے اسے واپس کر دو گی؟ منور صاحب نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ پاگل مت بنو منور، اب تک ہم نے اس پراپرٹی کے لیے جو کچھ کیا ان حقائق کو جھٹلا کیسے سکتے ہو؟ کشمالہ بیگم نے کڑی نظروں سے منور صاحب کو دیکھا۔ ہاں ہاں ماسٹر مائنڈ تو آپ ہیں، ماننا پڑے گا آپ کو، منور صاحب نے خوشامد کی تھی، جس پر کشمالہ بیگم مسکرا دی تھی۔ زارا بھی حال میں آئی تھی جہاں فنکشن چل رہا تھا، کپل ڈانس کے نام پر ڈرامہ چل رہا ہے، وہ منہ بسورتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ ایک ویٹر اس سے ٹکرایا تھا، اندھے ہو نظر نہیں آتا، سارا ڈریس خراب کر دیا ایڈیٹ۔ وہ میکسی پر جوس سے لگا دھبا دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ ویٹر اس کے ہاتھ میں ایک چٹ تھماتا ہوا سوری میم کہہ کر فوراً وہاں سے جا چکا تھا۔ آس پاس دیکھتے ہوئے اس نے چٹ کو مٹھی میں دبایا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آخر کرنا کیا چاہتی ہو تم؟ جب تم سے کہا گیا ہے پاکستان سے فوراً چلی جاؤ تو کیوں نہیں گئی، اور خود دشمن کے علاقے میں گھوم رہی ہو کھلے عام، بغیر یہ سوچے کہ تمہاری سچائی جانتے ہوئے تم پر جھپٹ پڑے گا؟ میری بات مانو، بے وقوف مت بنو، ابھی وقت ہے وہاں سے نکل جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میری پریشانیاں کم نہیں ہیں، ان میں مزید اضافہ مت کرو، کبھی نہیں پیارے انکل۔ وہ چٹ کو پھاڑتے ہوئے ڈسٹ بن میں ڈال کر منہ بناتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اپنا کام کیے بغیر تو ہرگز نہیں جاؤں گی، مسکراتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارے یار اس جوتی کو ابھی ٹوٹنا تھا، زالے نے غصے سے شوز پیر سے نکالا جس کی زپ ٹوٹ گئی تھی۔ اف، ان کاموں کی وجہ سے میرا پیارا جوتا ٹوٹ گیا، اب کیا کروں گی، ننگے پاؤں تو گھوم نہیں سکتی۔ آنکھیں گھما کر خفکی سے کہتی کہ وہ شوز ہاتھ میں پکڑ چکی تھی۔ کیا کروں؟ آس پاس دیکھتے ہوئے اس کی نظر ندیم پر پڑی تھی۔ ارے سڑو، آپ میرے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ وہ شرارت سے کہتی ہوئی جوتا ہاتھ میں ہی پکڑے اس کی جانب بڑی تھی جو گارڈز کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ گارڈز اس کے پیچھے رکے زالے کو دیکھ کر فوراً وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ سنجیدگی سے پیچھے مڑا تھا۔ مجھے تھوڑی سی مدد چاہیے، آپ کریں گے؟ وہ شوز پیچھے چھپاتے ہوئے معصومیت سو بولی، جس پر ندیم نے مجبوری میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرا شوز ٹوٹ گیا اور مجھے میچنگ شوز چاہیے، آپ میرے ساتھ مال چلیں گے؟ وہ شوز اس کو دکھاتے ہوئے مسکرائی، جس پر اس نے سرد نظروں سے شوز کو دیکھا جو ذرا سا ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ بن سکتا ہے، وہ نرمی سے بولا تھا، مگر کیسے؟ زالے نے آئی برو چکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اسے شوز لے کر اسے سائڈ پر لے گیا، اسے چیئر پر بٹھاتے ہوئے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ ارے نہیں ایسا مت کریں، میں فوراً کھڑی ہوئی تھی، پلیز مجھے کرنے دیں۔ زالے نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو نظریں جھکائی اس کے پیر میں شوز ڈالتے ہوئے زپ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے بھی سڑو نہیں ہیں، وہ دھیرے سے بولی جو اس نے بخوبی سنا تھا۔ ہو گیا میم، وہ نظریں جھکائی ہی بولا تھا، وہ فوراً اٹھ کر جانے کی تیاری میں تھا۔ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو، اور مجھے میم مت کہا کرو، میں چھوٹی ہوں تم سے، وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ نظریں اٹھاتے ہوئے گہری نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بغیر جواب دیے وہ فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ تو ہے تم میں بھی، زالے مسکراتے ہوئے شوز کو دیکھ گئی تھی جو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔
अलीज़े और दाइम इस वक्त स्टेज पर थे। निशाल और मारिया फूलों से सजी थी लिए हुए थी सजी थालियां लिए हुए थी जिनमें रखी गई थी जिनमें रिंग्स रखी गई थी। दाइम ने मुस्कुराते हुए रिंग निकाल कर अलीजा की तरफ हाथ बढ़ाया था। वो शर्माती हुई इसके हाथ में हाथ रख चुकी थी। वो मोहब्बत से इसकी उंगली में अंगूठी पहना चुका था। हाय मेरी तो आंखें ही भर आएंगी। नजम ने निशाल के पीछे से खनखना कर खनखा कर कहा, जिस पर वो इसकी उंगली पकड़ती हुए जोर से मरोड़ गई थी। वो मुंह मरोड़ता वो बस हंस रहा था। अलीजे ने रिंग निकालकर दाइम का हाथ थामा था, जिस पर वो नजरों में ढेर मोहब्बत समोई से देख गया था। अलीजे ने मुस्कुराते हुए इस रिंग पहनाई थी। लाउंज तालियों से गूंज उठा था। निशाल ने अलीजे को फिर गले लगाते हुए मुबारकबाद दी थी। दूसरी तरफ हरब ने और आगा साहब ने सबसे पहले दाइम को गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। ताबीरा स्टेज से दूर खड़ी खामोशी से सब देख रही थी। जब फरजाना ने इसके कंधे पर हाथ रखा वो जल्दी से पीछे मुड़ी थी, मगर फरजाना को देखकर वो अफसुर्दा हुई थी। क्या वो किसी और का इंतजार कर रही थी? ये तो इसका दिल जानता था। कशमाला बेगम जोनी को लिए स्टेज पर गई थी, जबकि आफरीन बेगम जो जोनी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, कशमाला बेगम को देखकर अपनी जगह पर थम सी गई थी। मुनव्वर साहब मरजान को लेकर स्टेज पर आए थे। जाले और मारिया ने रिंग्स उठा रखी थी। जोनी की नजरें सिर्फ मरजान पर थी। जब कोने में खड़ी जारा सीने पर हाथ बांधे सारे मनाजिर देख रही थी, जोनी ने मारिया से रिंग लेकर मरजान की तरफ बढ़ाई। वो संजीदगी से हाथ बढ़ा चुका था। तुम मेरे हो, जोनी ने नजरों से इसे कहा था, जो वो समझ गया था। इसका हाथ थामते हुए जोनी ने इसे रिंग पहनाई थी और इसके हाथ की पिछली जानिब दो बराबर तिल पर होंठ रखकर मोहब्बत से इसे देखा था। वो हाथ पीछे रहते हुए स्पार्ट नजरों से इसे देख गया था। ओए होए, मारिया ने ताली बजाते हुए जोनी की हिम्मत की दाद दी थी, जिस पर सब ने तालियां बजाई थी। ताबीर का चेहरा मुरझा गया था। वो उठकर जानना चाहती थी, ये हमें क्या हो रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, हमें क्यों हक जिताना चाह रहे हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, ये क्या हो रहा है, हमें इतनी जज्बात के लिए किसके लिए? फरजाना ने इसके मुरझाए चेहरे को देखा और फिर स्टेज की तरफ, जहां मरजान जोनी को रिंग पहना रहा था। तबीर उठाकर मुंह पर हाथ रख देती एक जानिब भागी थी। फरजाना भी इसके पीछे गई थी। वो किचन में आकर दिल खोल कर रोई थी। क्या हो रहा है आखिर, ये क्या है, क्यों बुरा लग रहा है हमें? मुसलसल 3 साल हम पर बेइंतहा जुल्म करने वाले इस शख्स के लिए हमारे दिल में उठते जज्बात क्यों? वो चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए रोई थी। फरजाना ने आकर इसे गले लगाया था। हमें क्या हो रहा है बीजान, आप बताइए क्यों हो रहा है? हम खुद को नहीं संभाल सकते, हम इन्हें नहीं खोना चाहते, क्यों? वो रोते हुए रुकी थी इसे सामने खड़ा देखकर। फरजाना ने घबराते हुए इसे देखा। वो पॉकेट्स में हाथ डाले न जाने कब से वहां मौजूद था। वो जल्दी से आंसू छुपाते हुए फर्श से उठी थी, मगर इसकी भीगी पलकें इसके रोने का सबूत थी। वो संजीदगी से चलता हुआ इसके बराबर आया था। फरजाना बेहद घबराई हुई थी। क्या वो सब कुछ सुन चुका था? तबीर का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए वो इसे लेकर एक जानिब चल पड़ा था, बगैर ये सोचे कि कोई इन्हें साथ देखकर कैसे सोचता। वो इसके साथ भी बस ही खींचती चली जा रही थी। फरजाना ने दिल में सब ठीक होने की दुआ की थी। वो भला क्या कर सकती थी? इसे कमरे में लाकर बेड पर धक्का देता हुआ वो दरवाजा बंद कर चुका था। वो घबराई हुई जल्दी से गिरा दुपट्टा पहन चुकी थी। इसके हाथ खौफ से कांप रहे थे। वो बेहद गुस्से में था, मगर क्यों? मना किया था तुम्हें ड्रामा करने से। इसे कंधों से झंझोड़ कर वो कड़कदार लहजे में बोला। वो एक तरफ इसके गुस्से से घबरा कर आंखें बंद कर गई थी, तो दूसरी तरफ इसके लम्स को कंधों पर महसूस करती हुई कांप गई थी। हम आइंदा नहीं रोएंगे। वो बंद आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो गुस्सा भांपते हुए पीछे हटा था। आउट! वो 2 कदम पीछे होकर वो सर्द लहजे में कहता इसके दिल पर वार कर गया था। वो जल्दी से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वेट! वो घबराते हुए रुकी थी। तबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी हलक से बाहर आ जाएगा। इसका दिल फूट-फूट कर रोने को कर रहा था। अब तक तो वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त करती आई थी, मगर जज्बातों से दिल पर लगी ठेस का क्या करती? तुम रो रही थी, राइट? मगर क्यों? आज तो तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सर्द नजरों से इसे देखते हुए बोला, जिस पर ताबीर का दिल और तेजी से धड़क उठा। वो इसके सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। वो हमारे सर में दर्द था। नजरें झुकाते हुए वो साफ झूठ बोल गई थी, जिस पर वो चलता हुआ इसके सामने रुका। वो लब भींचती हुई घबराहट से हाथों की उंगलियां उलझाए इल्म मरोड़ने लगी। झूठ! वो इसका चेहरा थोड़ी सी पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए सीधा इसकी ब्राउन आंखों में देख गया था, जिनमें आज सिर्फ दुख, परेशानी और मलाल था। वो इसके करीब होने पर झटका खाते हुए पीछे हुई थी। इसका बाजू नुकीले डेकोरेशन पीस के साथ लगा था। वो दर्द से आंखें भींचती हुई सिसकी थी। Why are you so scared to come near me? वो धीमे से इसके कान के करीब सरगोशी कर चुका था, जिससे ताबीर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट की हड्डी में करंट सा दौड़ा था। एकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए इसका कोट पकड़ा था, जिस पर वो संजीदगी से इसकी भीगी बिल्ली बना कुछ देख गया था। मरजान में क्या कह रही थी कि जोनी के हाथ से कॉफी का कप जमीन पर गिरा था। इन दोनों को इतना करीब देखकर एकदम धमाका और लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए का कोट पकड़ा था, जिस पर वो संजीदगी से भीगी बिल्ली बना देख गया था।
مرجان میں کیا کہہ رہی تھی کہ زونی کے ہاتھ سے کافی کا کپ زمین پر گرا تھا ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر، جبکہ لائٹ کے آتے ہی وہ فوراً اس کا کوٹ چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! زونی نے گلا پھاڑتے ہوئے تعبیر کو دیکھ کر کہا، آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں، اپنی بکواس بند رکھو۔ زونی نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے مرجان سے دور کیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرامے کو انجوائے کر رہا تھا۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو اچھے سے جانتی ہو، امیر زادے پاس آنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتی تم۔ اس کی صفائیاں جھٹلاتے ہوئے غصے سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ مرجان تعبیر کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ کیا وہ اسے ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتا تھا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ چٹاک زونی کا تعبیر کو تھپڑ مارنا مرجان کو سنجیدہ کر گیا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں درد سموئے سے دیکھ گئی تھی، جو سنجیدگی سے اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ بازارو عورتیں، تم ان میں سے ہو، اچھے سے جانتی ہوں۔ مرجان اور میری انگیجمنٹ ہوئی ہے، پھر بھی تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ تم سوچتی ہو وہ تم جیسی لڑکیوں کو لفٹ دے گا؟ اپنی اوقات دیکھیے، تم نے نوکرانی کی بیٹی ہو تم۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے لب بھیج گئی، تمہارا قصور نہیں، قصور تمہاری پرورش کا ہے۔ تمہیں بچپن میں ہی تمہاری ماں شہزادوں کی کہانیاں سناتی ہوگی جس سے تم بگڑ گئی ہو۔ افسوس تمہاری ماں۔ میری ماں کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ وہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی یکدم چیخی تھی۔ مرجان نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ تو کیا کر لو گی ہاں؟ سو کروڑ نوکرانی۔ زونی نے اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے طنزی انداز میں کہا تھا۔ رہنے دو۔ زونی کی کلائی پکڑتے ہوئے وہ اسے تعبیر سے دور کر چکا تھا۔ نہیں مرجان، اس کی ہمت تو دیکھو، تمہیں 2 تھپڑ لگانے چاہیے تھے اس کے منہ پر۔ جسٹ لک ایٹ ہر۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی یہ تمہارے روم میں آئے؟ زونی نے مرجان کا ہاتھ تھامتے ہوئے تعبیر کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ نفرت سے سر کو خم دیتی ہوئی افسردہ نظروں سے مرجان کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مرجان اس کے جاتے ہی زونی کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اگنور کرو، میں کل ڈیڈ سے کہہ کر اسے گھر سے نکلوا دوں گی۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے وہ مسکرائی، جبکہ وہ سنجیدگی سے باہر بند دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج تک وہ صرف اسے فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کرتا آیا تھا، مگر آج بات اس کی پرورش تک آ گئی تھی جسے شاید وہ ہرگز سہ نہیں پائی تھی۔ میں سرونٹ سے کہہ کر یہ صاف کروا دوں گی، ڈونٹ وری۔ آئی تھنک یو شوڈ لیو۔ اسے کلائی سے پکڑتے ہوئے وہ کمرے سے نکال چکا تھا۔ کیا یہ تو بری بات ہے، ایسے تو مت کرو، وہ دروازہ بجاتے ہوئے تنگ کر بولی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ فرزانہ جو سونے کی کوشش کر رہی تھی فوراً بستر سے اٹھی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے دیوار کے سہارے ڈہ گئی تھی اور منہ پر ہاتھ دیتے ہوئے کرب کی آخری حد پر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بچے کیا ہوئے؟ فرزانہ نے اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ صاف کیا، مگر مسلسل آنسو سے اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ فرزانہ جلدی سے اٹھی اور پانی کا گلاس اس کے خشک ہونٹوں تک لے گئی، جسے وہ سر سے جھٹکتے ہوئے پینے سے انکار کر چکی تھی۔ میری بچی مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے آخر؟ فرزانہ نے گلاس رکھتے ہوئے شفقت سے اسے گلے سے لگایا تھا، جس پر بری طرح ٹوٹی تھی۔ اس کی ماں اسے ایسے ہی چپ کراتی تھی جب وہ رویا کرتی تھی۔ ہم مر جانا چاہتے ہیں بی جان، اس اذیت ناک زندگی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، ہمیں ہماری ماں کے پاس جانا ہے بی جان۔ وہ روتے ہوئے سر گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اس کی بے بسی دیکھ کر۔ ہم اور نہیں سہ پائیں گے، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ملال بڑھتا چلا جائے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم موت مانگے مگر ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس اذیت پر زندگی سے موت بہتر ہے نا بی جان؟ وہ مسلسل تڑپتے ہوئے رو رہی تھی اور فرزانہ اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ہم مرنا چاہتے ہیں، یا خدا آج ہمیں موت سے اشنا کر دے، اب اور نہیں سہ پائیں گے۔ ایسا نہیں کہتے بچے، فرزانہ نے تعبیر کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے شفقت سے کہا، مگر وہ ذرا بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ فرزانہ کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھی، روتے ہوئے بری طرح کھانس رہی تھی۔ بیٹا پانی پی لو، میری بات مانو۔ فرزانہ نے ایک بار پھر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا کر کہا، مگر وہ سر کو خم دیتی ہوئی انکار کر گئی تھی۔ ہمارا دم گھٹ رہا ہے بی جان۔ وہ گردن کو سختی سے پکڑتے ہوئے کھانسی تھی۔ یا خدا! فرزانہ نے جلدی سے ونڈو کھولی تھی تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ وہ فرش پر گری بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں کیا کروں خدایا، اس کی طرف تو دیکھ۔ فرزانہ کے پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ بڑی صاف! فرزانہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، جبکہ تعبیر گہرے گہرے سانس لیتی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، فرزانہ کے دروازہ پڑنے پر سنجیدگی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ بڑی صاف! وہ لڑکی، وہ ہانپتے ہوئے فرزانہ بول نہیں پا رہی تھی۔ فرش پر اس سے سانس نہیں لیا جا رہا۔ وہ اس کی آدھی بات سمجھ کر وہ فوراً سرونٹ کوارٹر کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ مشکوک ہے، دائم نے حرب سے بحث کرتے ہوئے کہا۔ دونوں لاؤنج سے اسے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے جب انہوں نے مرجان کو فرزانہ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہوگا بھائی؟ دائم نے حیرت سے حرب کی طرف دیکھا تھا، جب کہ حرب کی نظر ویٹرز پر پڑی تھی جو پھولوں کے گلدستے کے قریب کھڑے کچھ کرنے میں مصروف تھے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ حرب نے دونوں کو سختی سے مخاطب کیا، جس پر دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ سر نے یہ پھولوں سے بدلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت بولے تھے، لیکن یہ تو فریش ہیں۔ دائم نے تفتیش کی۔ وہ دونوں گھبراتے ہوئے ایک جانب دوڑے تھے۔ میں نے کہا تھا یہ دونوں مشکوک ہیں، صبح سے یہ پورے گھر میں گھوم رہے ہیں۔ دائم اور حرب دونوں ان کے پیچھے دوڑے تھے۔ ان کو ہرگز مت جانے دینا، حرب نے دائم کو آرڈر دیا، جس پر وہ منہ بسور گیا تھا۔ یعنی میں ان کو چھوڑ دوں گا برو؟
दाइम ने भागते हुए शोशे छोड़ा, जिस पर हरब ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। अच्छा सॉरी, चलो पकड़ते हैं। दाइम तेजी से भागता हुआ एक वेटर को दबोच चुका था, जबकि दूसरा इसके पकड़े जाने पर खुद ही रुक गया था। बड़े दिनों बाद मुर्गे मिले हैं, आज तो मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगा। दाइम ने वेटर को गर्दन से दबोचते हुए तंज किया, जिस पर दोनों वेटर्स खौफजदा होकर एक दूसरे की जानिब देख गए थे। वो जल्दी से दरवाजा खोलते हुए अंदर आया था। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई नफरत भरी नजरों से इसे देख गई थी। वो धीरे से चलते हुए इसके करीब बैठा था। तमाशा देखने आए हो? मर क्यों नहीं जाने देते आप? सर, हमें आपकी हमदर्दी नहीं, जस्ट शट अप, पानी पियो। पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो सपाट लहजे में बोला था, आपके हाथ से पानी पीने से अच्छा हम मर ही जाएं। वो हकारत भरी नजरों से इसे देखकर खाली लहजे में हंसी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पानी पियो। आपकी बार वो सख्त लहजे में बोला। मैं हमें नफरत है आपसे। वो सर जमीन पर टिकाती हुई बोली, और आपसे जुड़ी हर शय से। हम बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। वो इसे जमीन से उठा चुका था। फरजाना ने मुंह पर हाथ रखा था। वो इसे उठाए कमरे से बाहर निकल गया था। हमें नीचे उतारे। वो घबराते हुए एहतजाज कर रही थी, डैम इट भाई, रुक जाओ, इधर मत जाओ। हरब, जो वेटर्स को गार्ड्स के हवाले करके मरजान से बात किए घर से इसकी तरफ बढ़ा था, दाइम ने इसका कोट पकड़ते हुए धीरे से कहा, जिस पर वो गुस्से से लाल हुआ था। बेहद बचपना था दाइम में जो इसे तपाता था। देखो, वो अकेले नहीं है। हरब के कंधे से शरारत से लगता हुआ वो शौक से बोला, जिस पर हरब भी चौंका था। वो तबीर को उठाए न जाने कहाँ ले जा रहा था। ये कहाँ जा रहे हैं? लड़की को लिए? हरब ने हैरानगी से पूछा था। आपको बताकर जाएं। दाइम की बात पर उसे गर्दन से पकड़ते हुए जोरदार मुक्का इसके कमरे में मार गया था। हाँ हाँ, दाइम कहकर मारते हुए हंसकर भागा था। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हरब ने संजीदगी से सोचा था, और कुछ सोचते हुए वकार की चाबियां ली इसके पीछे दबे पाँव चल दिया था। तुम्हारी वजह से वो ब्लडी वेटर्स पकड़े गए। अगर वो ठीक होते तो अब तक वापस लौट आए होते। मतलब साथ में वो पकड़े गए ना, तो तुम वहां होती ना, हमें ये सब देखना पड़ता। वो फ़ोन कान से हटाते हुए मुंह का जाविया बिगाड़ गई थी। मैंने नया फ़ोन लिया है। एटलीस्ट इस पर अपनी सो कॉल्ड डांट से मेरा दिमाग ख़राब मत करें अंकल। और मैं अपना बदला लिए बगैर इस घर से नहीं जाने वाली। मुंह बसोरते हुए बोली थी। सो बी इट, मगर याद रखना, इस बार मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला। तुमसे बढ़कर मुझे मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन और मेरा काम अजीज है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। व्हाट नॉनसेंस। वो फ़ोन रखते हुए बेड पर लेटते हुए फ़ौरन सो गई थी। आगा, मुझे जुनैरा बहुत पसंद है। कसाब किसाब बेगम ने काफ़ी का कप आगा साहब की तरफ बढ़ाया, जिस पर वो संजीदगी से इसे देखे गए थे। आपकी बात का मकसद समझ रहा हूँ, मगर इसकी मंगनी मरजान से हो चुकी है। आगा साहब ने संजीदगी से कप लेते हुए कहा। मैं जानती हूँ शायद खुदा को ये मंजूर था, मगर मैं बचपन में ही आफरीन से जुनैरा को मांग बैठी थी। कितनी पागल थी मैं, किसाब बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो दिल में उदास थी। वो मरजान को पसंद करती हैं, आप जानते हैं। काफ़ी कसीब लेते हुए वो किसाब बेगम का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले थे, मरजान वाकई बहुत समझदार और प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। वो भी बेहद खूबसूरत थी। गोरी रंगत थी और वैसी ही आंखें, बिल्कुल वैसी। मुझे आबिश का चेहरा नजर आता है मरजान में। किसाब बेगम पुराने दिन याद कर अफसुर्दा हुई थी। जो कुछ हुआ हमें इसका बेहद अफसोस है, लेकिन मुनव्वर ने बच्चों को सहारा देकर बहुत नेकी का काम किया है। आप सही कह रहे हैं। किसाब बेगम ने आगा साहब के हाथ पर हाथ रखकर कहा, एक हफ्ते में बहुत काम करने हैं, बेहद मसरूफियत है, आप कर लेंगे? आगा साहब ने बातों में दरियाफ्त करना चाहा। हमारे बच्चों की शादी है आगा, हम ज़रूर करेंगे। किसाब बेगम पुरजोश लहजे में बोली थी, जिस पर आगा साहब मुस्कुराए थे। छोड़े हमें। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी। वो इसे कार में बिठाते हुए सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हटाएं इसे, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? वो गुस्से से कहती हुई सीट बेल्ट हटाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। वो कार को तेज रफ्तारी में अंधेरी सड़क पर दौड़ा चुका था। कार की स्पीड देखकर ताबीर का दिल तेजी से धड़का था। वो घबराते हुए गड़बड़ा कर गियर शिफ्ट पर मरजान के हाथ पर हाथ रख गए थे, मगर इसके ठंडे लम्स को महसूस करते हुए फौरन हाथ उठा चुकी थी। प्लीज़ सर, धीरे चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार की स्पीड मुसलसल तेज हो रही थी। वो धीरे से इसकी जानिब कहते हुए बोली थी। वो आंखों में ढेरों संजीदगी लिए कार को तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था। वो सहमी हुई खुदा से कुछ ना होने की दुआ कर रही थी। कुछ नहीं बोलूगी आज तुम, वो सब सुनोगी जो मेरे दिल में। आज तक मैंने नहीं कहा, मगर तुम सिर्फ एक तरफा तमाशा देखकर फैसला नहीं कर सकती। बेहद बुरा हूँ मैं, तुम्हारी नज़रों में राइट हूँ मैं, बेहद बुरा हूँ। कार को तेजी से ब्रेक्स लगाते हुए वो सीट बेल्ट हटाकर नीचे उतरते हुए गंभीर लहजे में बोला था। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए वो सख्ती से इसे बाहर निकाल चुका था। वो एक वीराने में थी, दूर दूर तक आबादी नहीं थी। ताबीर सहम गई थी। वो क्यों लाया था इसे ऐसी जगह? सख्ती से इसका बाजू पकड़ते हुए इसे एक जानिब लेकर चल दिया था। वो घबराते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो एक पुरानी बिल्डिंग के सामने से लेकर रुका था, मगर सब जल चुका था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, क्या वो एक घर था? देख रही हो, मेरी फैमिली हुआ करती थी। हाँ, मेरी फैमिली। तुम समझती हो फैमिली का मतलब? इसे कंधों से पकड़ते हुए बेहद करीब करते हुए धाड़ा था। इसकी आवाज़ में अफसुर्दगी, दुख, शर्मिंदगी सब था। इसकी धाड़ पर ताबीर की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो लब भींची इसकी आंखों में देख गई थी। सब बर्बाद कर दिया तुम्हारे डैड ने, सब। एक 10 साल के लड़के के सामने इसकी माँ बाप जलते रहे। मेरी फूफी जान को मेरी आंखों के सामने वो गोली मार गया था।
डू यू अंडरस्टैंड? इसकी आंखों में जमी वो बर्फें आज सब पिघल गई थी। आज ताबीर ने इसे रोते हुए देखा था। कितना गम समाये बैठा था वो अपने दिल में। आखिर क्यों, क्या कसूर था मेरा? मेरा बचपन छीन गया था इस दिन मुझसे। बात सिर्फ दौलत की थी। मांग लिया होता दे देते डैड साहब। मुझसे मेरी जीने की वजह मेरी ज़ारा छीन ली तुम्हारे बाप ने। एक 4 साल की मासूम बच्ची जो गुनाहों से पाक थी, इसको मौत के घाट उतारने की कोशिश समझती हो तुम? वो सख्ती से कहते हुए इसके कंधों में उंगलियां दसाता चला गया। वो दर्द से आंखें बंद कर गई थी। दर्द हो रहा है, इस दर्द का क्या जो मैं पिछले 14 साल से इस दिल में समोए बैठा हूँ। इस नफरत का क्या जो मैं तुम्हारे बाप से, तुमसे, तुम लोगों से जुड़ी एक एक शय से करता हूँ। यही चाहती थी ना मैं तुम्हारे सामने रोकर अपना गम बयान करूं। मुझे तकलीफ देना चाहती थी, दे चुकी हो तुम बेवकूफ़ लड़की। तुमसे नफरत करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हुई। तुम्हारी ये शक्ल याद दिलाती हो तुम इसकी। इसे धक्के देते हुए वो धाड़ा ताबीर मुंह पर हाथ रखती सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर आज वो नाकाम हो रही थी। वो क्यों रोना चाहती थी इसकी हालत पर? आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ, चली जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना जान से मार दूंगा। इतनी तकलीफ दूंगा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हें आज तक मैं सिर्फ मेंटली टॉर्चर करता है तुम जैसी लड़की को। कभी अपने उसके खोने का गम नहीं समझ सकती। चली जाओ यहाँ से, जस्ट आउट, और आइंदा मेरी नज़रों के सामने मत आना। इसे झड़कते हुए खुद से बहुत दूर कर चुका था। नहीं, वो रोती हुई इसका हाथ पकड़ गई थी। ऐसा मत कह, मैं कहाँ जाऊँगी? मरजान, हिम्मत कैसी हुई मेरा नाम लेने की? इस गर्दन से दबोचते हुए वो गराया, हमारा क्या कसूर? वो इसकी आंखों में देखते हुए रोकर पूछ गई, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है, तुम इस जल्लाद की बेटी हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। और क्यों न रहना चाहती हो? तुम तो आज़ाद होना चाहती थी ना, फिर क्यों नहीं जा रही? प्यार करती हो मुझसे? इसके बालों में उंगलियां उलझाए वो गंभीर लहजे में बोला था। इसके तेज धड़कते दिल के साथ वो तेज होती सांसों को बाखूबी महसूस कर रहा था। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं, वो धीमे से कहती हुई खुद से और इसे झूठ बोल गई थी। वो मुस्कुराया था इसके लफ्ज़ों पर। अकेली नहीं हो तुम, पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे दोबारा मेरे सामने भी आई कभी ना, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। इसे छोड़ते हुए पीछे हुआ था। वो रोते हुए इसकी जाने बड़ी, सोचना भी मत। स्टे अवे खून की बेटी। ताबीर को अपने कदम ज़मीन में धंसते हुए महसूस हो रहे थे। भूल जाओ तुम्हारी ज़िंदगी के वो 3 साल जिनमें मैं था। तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, और नहीं, चली जाओ। हम चाहते हैं आपको जाने के लिए। पीछे मुड़ा था, इसके लफ्ज़ों पर थम गया। मैं अकेला छोड़कर मत जाएं। हम कहाँ जाएंगे? अगर दोबारा ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो खुदा कसम आग लगा दूंगा तुम्हें। इसके चेहरे को मुट्ठी में जकड़ते हुए वो नफरत भरी नज़रों से इसे देखकर छोड़ गया था। वो बोझल कदमों के साथ सड़क पर गिरी थी। मत जाए। वो मुट्ठी भीगते हुए कार के हुड पर मार गया था। तबीर ने रोते हुए आंखें भींची थी। मेरी जिंदगी से निकल जाए। वो नफरत से धारते हुए कार में बैठकर वहां से जा चुका था। सुनसान अंधेरी सड़क में वो अकेली रह गई थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, सिर्फ खामोशी थी। सिर्फ खामोशी, वो तन्हाई थी जिसे वो बेहद घबराती थी। एक ही पल में इसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। हल्की ठंडी हवा में वो उठकर सुनसान सड़क पर चल दी थी। चारों तरफ खामोशी चाहिए थी, मगर इसके दिल में उठते तूफान का क्या, वो बस मर जाना चाहती थी। वो इस तमगर से कैसे इश्क कर बैठी थी जिसने हमेशा इसे गम के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी वो इसे छोड़ गया। आसमान पर बादल गरजा था। वो सहमते हुए खुद को अपने बाजू से छुपाते हुए सर झुकाए सड़क पर सर छुपाने की जगह तलाश कर रही थी। दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ तन्हाई के। इस बार बादल तेजी से गरजा था। वो कार को ब्रेक्स लगाते हुए रुका था। एकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए इसका कोट पकड़ा था, जिस पर वो संजीदगी से इसे भीगी बिल्ली बना देख गया था। वो लब भी तो वो इसकी यादों को झुठला चुका था, मगर वो जानता था वो डरती है बादल की गरज से, अचानक होने वाली आहट से। फिर क्यों अकेला छोड़ आया था इसे? चलते हुए अंधेरे में इसके पैर को पत्थर से ठोकर लगी थी। वो मुंह के बल गिरी थी। हमें मार देंगे, हम नहीं बचेंगे सर। वो इसका कोट मुट्ठी में मजबूती से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, क्वाइट, रोना बंद करो। वो रोते हुए इसके कोट में सर छुपा के चुकी थी। वो इसकी यादों को मुसलसल झटक रहा था। वो उठते हुए दोबारा सुनसान सड़क पर चल दी थी। बारिश बेहद तेजी से शुरू हो गई थी। वो घर पहुंच चुका था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और वो इसे सुनसान सड़क पर अकेला छुड़ाया था। हरब भी सब कुछ देखकर वापस लौट आया था। वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया था। इस वक्त मरजान से कुछ कहना आग में तेल डालने के बराबर था। वो खुद को कमरे में बंद कर चुका था। अपनी खबर ना इसका पता है, ये इश्क है। जो था नहीं है और ना था है, ये इश्क है। पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिलके हुआ है ये इश्क है। तशकीक है न जंग है माबेन अक्लो दिल, बस ये यकीन है कि खुदा है, ये इश्क है। बेहद खुशी है और है बेइंतहा सकून, अब दर्द है न गम न गिला, ये इश्क है। क्या रम्ज़ जाननी है तुझे असल इश्क की, जो तुझ में इस बदन के सिवा है, ये इश्क है। शोहरत से तेरी खुश जो बहुत है, ये है खर्द, और ये जो तुझसे खफा है, ये इश्क है। ज़ेरे कुबा जो हुस्न है वो हुस्न है खुदा, बंद कुबा जो खोर रहा है, ये इश्क है। और एक की कमी है समझना इसे मर्ज़, और इदराक की कमी है समझना इसे मर्ज़। इसकी दुआ न इसकी दवा है, ये इश्क है। शफाफ और साफ और लताफत में बेमिसाल, सारा वजूद आईना सा है, ये इश्क है।
یعنی کہ کچھ بھی اس کے سوا سوچتا نہیں۔ ہاں تو جناب مسئلہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ جو عقل سے بدن کو ملی تھی وہ تھی ہوس، جو روح کو جنوں سے ملا ہے یہ عشق ہے۔ اس میں نہیں ہے دخل کوئی خوف و حرص کا، اس کی جزا نہ اس کی سزا ہے، یہ عشق ہے۔ سجدے میں ہے جو محو دعا وہ ہے بے دلی، یہ جو دھمال ڈال رہا ہے یہ عشق ہے۔ ہوتا اگر کچھ اور تو ہوتا انا پرست، اس کی رضا شکست انا ہے یہ عشق ہے۔ شاہ ماننے میں تامل تجھے ہی تھا، میں نے تو یہ ہمیشہ کہا ہے یہ عشق ہے۔ یہ تو انتہائی سسپینسو سٹوری بنتی جا رہی ہے، انتہائی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا ڈیلی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، کیونکہ یہاں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔